Good afternoon, sir. Today we have with us eminent speaker and guest lecturer, Dr. Satya Prakash Gupta, sir. Good Sir is afternoon. assistant professor since 1998, Department of Botany, Bipin Bihari College, Jhansi, affiliated to Bundelkhand University, Jhansi. Sir have a great academic background. Sir did his PhD in botany, topic microbial activity of plant products from Bundelkhand University, Jhansi. Sir has MCA Botany with specialization in plant ecology. Sir is a coordinator, Chief Minister, Abhay Uday Yojana for UPSC and UPPSC Jhansi Mandal. Sir is a board of member, LOCF trainer. Sir is a evaluation and assessment nodal RHEO Jhansi Chitrakoot for Abacus and CMAPC. Sir has been research person in Guru Dakshta faculty induction program refresher courses in many programs also. Sir is a naturalist by heart with analytical skill and a strong capacity to harness human resource by conduct training, research survey, mentoring and consulting in diversified area of vocational and public domain with a hobby orientation for networking, career designing, event management, depression counseling, MAP, and various state of art aero-based activities. Sir has many area of expertise in the field of environmental sciences and climate change, mushroom cultivation technology trainer. Sir is an ICT tool, LMS model, Google tool. Sir is an expertise of medicinal and aromatic plants, ethnobotany, agri-business development, career counselor. Sir is a trainee of CFTRI Masoor Sensory Analytical of Food Products. Sir is also a member of FDC Kannauj Aromatherapy and Essential Oil. Sir is a member of DMR Solan Mushroom Cultivation Technology. Sir, I have a membership of Life member of National Academy of Science Kolkata, Life member of Essential Oil Association of India, New Delhi, Life member of Mushroom Society of India, Solan. Um, Dr. Satya Prakash Gupta sir is a life member of MAPAI, Bori Avi, Anand Gujarat, and Um, many societies. I welcome you, sir. Today the topic to speak is implementation of National Education Policy NEP 2020 in the light of UGC. The mode of communication will be bilingual, sir. On behalf of University of Kota Research Department, I welcome you, sir. Please start the session. Thank you, sir. Thank you very much, Divya Sharma, for inviting me and introducing me to the august audience just before me. I am delighted to be a part of your research methodology program, and I'm thankful to the Vice Chancellor of University of Kota, Registrar University of Kota, Director IQAC, University of Kota, and all the associated members who has given me this opportunity to address the congregation of the students with regard to the research and developmental aspects. Today's topic is very versatile. This is very unique. This is very, you can say, important with regard to the all the students and the faculty members, as well as the any guardian, parents, or teachers, whosoever is connected with the education. So is it okay to speak in English, or I should speak in both the blended language, Hindi as well as in English? So whatever you feel comfortable, please let me know regarding this. Hindi, sir. Hindi. Hindi, sir. But I Yes, can't sir. speak too much Hindi, but I try to speak as much No, as no, sir. possible It's because there are bilingual certain because technological terminology associated with this. Yeah, yeah, definitely, please, definitely. Don't worry. And every single aspect you will learn. Okay. So what do you
क्या जानते हैं आप लोग एनईपी के बारे में? थोड़ा सा मुझे अवेयरनेस का बताइए, आपका अपना विजन क्या है, आपका अपना व्यू क्या है, और एनईपी के बारे में आपका सोच क्या है? Implementation part today I will be discussing with regard to the UGC and other aspect, the highest apex governance body in India. तो कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट विच आर कनेक्टेड, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, उन विषयों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? तो आपका अपना नई शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या जानकारी है, क्या सोच है, और क्या आप जानते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपका लेवल ऑफ डेप्थ क्या है। जो भी पार्टिसिपेंट बताना चाहे, फील फ्री टू। ये एक इंटरेक्टिव सेक्शन है वेयर वी विल लर्न बोथ वेज, समथिंग मे बी पॉसिबल दैट यू पीपल विल एड्रेस टू मी। तो बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कशन के माध्यम से, जो विचार विमर्श के माध्यम से एक दूसरे से हम आपस में विचार विनिमय करेंगे। तो थोड़ा सा बताइए, प्लीज बी इंटरेक्टिव। ऑल आर स्टूडेंट्स और द फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो? सभी विद्यार्थी हैं क्या, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, क्या है? सब फैकल्टी मेंबर्स भी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं एज। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, तो नई शिक्षा नीति के बारे में जो भी विद्यार्थी हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपका अपना क्या आपको लगता है, क्या इसके मेन मेन आपको फीचर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, या क्या आपका अपना विषय सोच है? क्योंकि नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2021 से भारत में लागू हो चुकी है, ठीक है ना? और नई शिक्षा नीति 2020 आपको प्राप्त हो चुकी है, और ये तीसरी आपकी नई शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में, और आपका 34 ईयर, दिस इज द थर्ड वन। बहुत सारे शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत सी चीजें, और अपने आप में ये एक वर्सेटाइल और दुनिया की बड़ी विस्तृत शिक्षा नीति है। जी हेलो। प्लीज। Yes, sir. हाँ हाँ बोले। About his new education policies, it's a holistic education system for the country. Effective जी जी adoption जी। of modern training methods, technology, applications, and skill development, and shape all the personality of students. It is like जी। और कोई क्या नया परिवर्तन आया है जो हमारी शिक्षा के अंदर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और दूसरे लेवल्स पर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, या जो स्टूडेंट्स हैं वो जब पढ़ रहे थे और आज पढ़ रहे हैं, क्या परिवर्तन है? सर पहले ना बच्चों पे ना पढ़ाई पे फोकस दिया जाता था। हेलो। अब पढ़ाई के हाँ। अलावा उनको अलग चीजें भी सिखाई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, है ना, अदर हाँ। एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट हम हाँ। करा सकते हैं। ये एजुकेशन न्यू पॉलिसी के अंदर आया हुआ है। ये होलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र शिक्षा है वो। जी सर। शिक्षा का एक आयाम था, पहले आप शिक्षित एक आयाम से होते थे, लेकिन शिक्षा के विभिन्न आयाम है। तो अब सारे आयामों के अंतर्गत सभी तरह की शिक्षा आपको चाहिए, इसलिए समग्र शिक्षा है, होलिस्टिक है। जी सर इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, आई थिंक। जी, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, बड़ा मजा आपको आएगा। अच्छा, इसमें नया क्या इंट्रोड्यूस किया गया है अभी? आपने जैसे एक शब्द आया है इसमें, क्रेडिट। हायर एजुकेशन में कभी आपने क्रेडिट का शब्द नहीं सुना होगा। डेबिट क्रेडिट ज्यादातर हम मनी मैटर्स में देखते हैं और दूसरे एरियाज में देखते हैं, तो यहाँ क्रेडिट आया है। जी, क्या है क्रेडिट? जी हेलो सर, सर। क्रेडिट सिस्टम आया हुआ है इसमें यहाँ पर। हेलो सर। जी, बीए में भी अब क्रेडिट सिस्टम हर दिया सब्जेक्ट जाता के है मार्क्स के क्रेडिट थ्रू। होंगे। क्रेडिट से मतलब क्या है और क्यों क्रेडिट की जरूरत पड़ी? सर ये तो क्वेश्चन उठा था पर समझ नहीं आया था क्रेडिट सिस्टम क्यों आया, सीजीपीए क्यों आया। हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। अब मैं बता दूंगा आपको, इस सेशन के बाद सारी चीजें आने लगेंगी। जी सर। हेलो सर। जी, नई शिक्षा नीति के बारे में मैं बताना चाहूंगा सर। हमारे भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में शुरू हुई थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में हुई थी, जिसमें तो मैंने बता दिया आप इसमें बताइए नया क्या आपको है। 1992 में यशपाल शर्मा कमेटी द्वारा संशोधित किया गया था, और 2020 नहीं नहीं, में 1992 में नहीं, नहीं 1992 में नहीं है। नहीं 1992 में संशोधित किया था सर दूसरी शिक्षा नीति में। नहीं नहीं नहीं, वो प्रोफेसर ए प्रोफेसर जन्म थे, यशपाल। यशपाल, प्रोफेसर यशपाल नहीं थे उस समय। दैट वाज पीओए, और उसके अंतर्गत उसके सीएबी बाद का में गठन नई हुआ शिक्षा था, सेंटर।
जी जी, अच्छा। प्रोफेसर जयसवाल कमीशन उसके बाद 2009 में आया था। हाँ हाँ हाँ, जी, उसके बाद में सर 2020 में ये शिक्षा नीति शुरू हुई है। इसमें नहीं, एक नया सूत्र क्या है, तो है? आप आपको क्रेडिट से क्या आप समझते हैं? क्रेडिट क्या है, या जो One नई point is शिक्षा नीति के मेन फीचर्स क्या है? आपको multi-state क्या लगता है educational coordination is also a tremendous task of this education policy. एजुकेशन कोऑर्डिनेशन? अच्छा, इसका Multi-state मोटो educational क्या है? coordination. इसका मोटो क्या है? नई शिक्षा नीति का मोटो क्या है? उद्देश्य क्या है? किसी चीज का आप उद्देश्य लेके चलते हैं तो क्या उद्देश्य है? Sir, सेशन बहुत educate, लंबा है। Sir, encourage, its and aim is enlighten. to provide education at different levels, like at elementary level start हो रहा है तो according to the age, जैसे बच्चा 6 साल का हो रहा है तो उसका first class शुरू हो रहा है, तो like the purpose is to make the child grow with his age. नहीं, बहुत सी चीजें अलग है, अभी आपको अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी हेलो हाँ हाँ, सर, बताएं। जो हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक ले जाना इसका मेन उद्देश्य है। जीआर क्या होता है? आपकी ग्रोस आवाज नहीं। एनरोलमेंट रेशियो। हाँ, क्या ग्रेस चीज है ये लोगों को समझाइए, क्या चीज है ग्रोथ एनरोलमेंट? क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? सर, ये जैसे मतलब +2 के बाद में मैक्सिमम 50% तक बच्चे आगे एनरोल हायर एजुकेशन के लिए हो सके, मतलब नहीं, अभी कितना है और आगे 50% का टारगेट है, तो वो क्या है? अभी सर 21-2% के आसपास है कुछ। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, अभी अभी शायद का मेरे को आइडिया 26 नहीं के है। आसपास है। नहीं। सर शायद 26 के Sir, आसपास है, education और जो इसमें एजुकेटेड जो रेशियो 0.69% होगा एजुकेशन का, लिटरेसी रेट को बढ़ाना ही है उसका एम। जी नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। देखिए, एक वर्ड सबसे पहले आया था, अब थोड़ा सा हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड का मैं पॉज लूंगा, 1 सेकंड का बस। हेलो तो समग्र शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा, इनको बढ़ावा देना। ये बात सभी एजुकेशन पॉलिसीज में थी भाई। अच्छा, सॉरी, 2 मिनट का इंटरप्शन था। देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि भारत जो है ना, ये पुराना विश्व गुरु पहले कहलाता था, ठीक है ना। तो जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ये है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और दूसरा इसका सबसे एस्पेक्ट बड़ा क्या है कि जो हमारी एंशिएंट हेरिटेज की उसको रिवाइव करके, दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन भारत से था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और वो हमारी समाप्त हो गई, तो पुनः उसी स्थिति में अपने को लाना है। और दूसरा, जो एंशिएंट हेरिटेज है उसको लेके आना है, और जो हमारा ज्ञान विज्ञान और जो भी हमारी धरोहर थी, जो ज्ञान था, उसको किस तरह से वेस्टर्न पीपल ने यूटिलाइज किया और हम उससे नहीं यूटिलाइज कर पाए, तो एक समग्र सोच के साथ है। एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है कंट्री को, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और जो जीईआर की बात आप कर रहे हैं, 2020-21 में जीईआर 27.3% हुआ करता था, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। दूसरे देशों में 65, 70, 80 है, हमारे यहाँ ये 27.3 है, जो ड्रॉप आउट रेट्स की वजह से, जैसे पूरी जो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। बाई 2037 इसको 50% का टारगेट नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है ना। आज मैं आपसे जो हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या शिक्षा नीति के अंदर चेंज है और किस तरह से शिक्षा नीति आई है और क्या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा, क्यों इस सीबीसीएस मोड को, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम को, एनुअल सिस्टम था, फिर सेमेस्टर सिस्टम था, फिर सीबीसीएस लेके आए, तो उसमें क्या फर्क है, ये दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैं अपनी पीपीटी शेयर करके, क्योंकि सेशन ये 3 आवर्स का है, वो मुझे
कट शॉर्ट करते हुए आपको 1.5 घंटे के अंदर बताना है, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक। ये पीपीटी शेयर हो गया है? नो सर। यस सर, किधर हो गया? पीपीटी तो शो नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपकी वो जो स्क्रीन है वो विजिबल हुई है। अच्छा, ये रुक जाइए, जस्ट वेट। Is it audible to everyone? नो। नो प्रियंका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट वेट करिए, सब प्रॉब्लम हो जाता है। मैं 1 मिनट में री-लॉग इन कर रहा हूँ। सर का आवाज आ रहा है क्या सबको? जस्ट वेट, सम टेक्निकल ग्लिच हैज occurred. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब आवाज आ रही, नहीं आ रही? हेलो? हाँ सर, आ रही है आवाज। Yes, sir, आ रही है।
आ रही है सर। some problem might have occurred, that's why this problem is occurring. Okay, so sorry for interruption. Actually continuously I am taking class, that's why some problem may occurred over there. In the morning I was taking lecture at Bilaspur University. So बट सर आपके दो दो स्क्रीन नजर आ रहे हैं, मतलब दो आईडीज लॉगिन हो रहा है आपका, एक आईडी म्यूटेड है, एक आईडी अनम्यूटेड है। हाँ नहीं ठीक है, वो तो मैं मालूम है, दैट आई कनेक्ट। अब आप स्क्रीन शेयर हुआ, अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों प्रॉब्लम दे रहा है ये। नो सर। But this is shared. मेरे यहाँ शेयर शो कर रहा है, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर एक बार से आप लॉग आउट करके शायद पुनः लॉगिन कीजिए, फिर हो जाए। एक सेकंड, जस्ट वेट मैं देखता हूँ, एक सेकंड। Maybe because of some server compatibility or internet speed, these things happen sometimes. ये शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो पता नहीं क्यों। मैं लॉग आउट करके एक बार लॉग इन दोबारा। यस सर। अब आवाज आ रही होगी क्लियर ना? यस सर, आ रही है आवाज। This is maybe due to some server incompatibility. Sometimes there used to be lack of speed. So when I am sharing, now I think so this will be okay. प्रॉब्लम दे रहा है शेयर करने में। चलिए मैं पीपीटी दूसरे ढंग से शेयर करता हूँ, क्योंकि ये शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अभी सुबह सारे सेशन बहुत अच्छे चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम लिटिल बिट द स्पीड कंपैटिबिलिटी में भी देयर। Actually, this is blocking somewhere the sharing. Why? किसी और ने तो शेयर नहीं कर रखा है कहीं कुछ, जिस वजह से ये ब्लॉक हो रहा हो। नहीं नहीं सर, किसी ने शेयर नहीं कर रखा। क्योंकि मैं यहाँ से शेयर किए हुए शेयर दिखा रहा, लेकिन वो हो नहीं रहा। शेयरिंग हो गया सर? हो गया सर। हो गया सर। स्क्रीन पे पीपीटी दिखाई दे रही है ना?
नहीं No, सर, sir. नहीं दिखाई दे रही सर। some problem is there. वो स्पीड कंपेटिबिलिटी आ रही है थोड़ा सा, और कुछ नहीं. दो मिनट वेट कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं. These things happen. I think so. Now this has shared. Yeah, please. Some technical glitch might have occurred, so sorry for that interruption. Now we shall start our session. So basically, when we start this holistic concept of the education as well as, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। अब शेयर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ये जो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, जिस होलिस्टिक कंसेप्ट की बात हम कर रहे हैं ना, उस होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडिया में हमारा विवेकानंद जी का रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, श्री अरविंदो, इनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। एंशिएंट टाइम में दिस कंट्रीब्यूशन ओज इट्स ओरिजिन टू द भगवत गीता, हमारे वेद उपनिषद और जो ट्रिटाइज थे जहां पर गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल की परंपरा थी। यहाँ जो होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर सबसे प्रथम वाक्य है वो है स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू, एंड डिविनिटी इज व्हाट? डिविनिटी इज योर विजडम। जो आपके अंतरात्म में जो विवेक है, जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उसको रिवाइव करके और उसके साथ खड़े होकर आगे बढ़ना है। मारिया मोंटेसरी ने बड़ा एक कैटेगरिकली हायर एजुकेशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया था। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूलिंग सिस्टम में दो तरह के एजुकेशन सिस्टम है, किंडरगार्टन टेक्निक एंड मोंटेसरी टेक्निक। वहां एजुकेशन के बारे में कहा गया तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि एजुकेशन कैन नॉट इफेक्टिव अनलेस इट हेल्प्स ए चाइल्ड ओपन अप हिमसेल्फ टू लाइफ। शिक्षा जब तक इफेक्टिव नहीं है, जब तक प्रभावी नहीं है, जब तक कि एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को उसके जीवन यापन और जीवन की समस्त विधाओं आयामों में उसको खुल के जीने का अवसर नहीं प्रदान करती है। जो हमारी शिक्षा का सिस्टम है, जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, वो एक हमारा टीचर सेंट्रिक एजुकेशन और एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। ये बेटा बंद कर लीजिएगा जिसका माइक खुला है। तो जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कही थी कि टीचिंग मेथड लर्नर के ऊपर डिपेंडेंट होकर होना चाहिए। लर्नर किस डोमेन में फ्री है, कहाँ कर सकता है। जैसे कि अगर हम कहीं किसी जगह बैठ के सारे विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं, सारे जैसे जंगल के करके हम उनको एक टास्क दे दें, अगर उसमें और दूसरे एनिमल्स भी हैं तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने एक बड़ा कैटेगरी कहा कि जैसे कि एवरीवन इज जीनियस हूएवर इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो भी व्यक्ति जीवित है उसके ब्रेन की पावर को हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। बस ये बात अलग है कि हमें उसकी कैपेबिलिटीज को तराशना है, पता करना है। हमें जब तक अनभिज्ञ है तब तक हम उसके ज्ञान बिंदुओं को नहीं समझ सकते। वही चीज थी कि एवरीवन इज जीनियस बट इफ यू जज ए फिश on its ability to climb a tree, it will live its whole life
बिलीविंग दैट दिस इज स्टूपिड। क्यों? अगर हम उसको एक टास्क देते हैं मछली को जिसको पानी इसमें कंफर्ट जोन है, वहां वो कंपेटिबल है, हम कहें पेड़ पर चढ़ जाओ, अगर वो चढ़ने के लिए जाती है तो एक शिक्षा में जो एक टीचर सेंट्रिक एजुकेशन में एक टास्क दे दिया उसके अनुसार अगर वो चढ़ने का प्रयास करेगी तो जीवन में यही सोचेगी कि ये तो बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम था और उसी बिलीविंग में रहेगी। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति के अंदर कंफर्ट जोन दिया है, यहाँ पर एक शिफ्ट कर दिया कि अभी तक हम जो शिक्षा थी वो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन में लेते थे और अब शिक्षा हमारी लर्नर सेंट्रिक है और स्टूडेंट सेंट्रिक है। शिक्षा के विभिन्न आयामों में बहुत पुराने समय से जो चले आ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो पहला और इम्पोर्टेंट जो सबसे बढ़िया जो एक एजुकेशन के ऊपर काम हुआ था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हुआ। क्योंकि पुराने समय में जो शिक्षा नीति हमारी होती थी या जो शिक्षा होती थी जो एंशिएंट टाइम्स में, वहां पर ये गुरुकुल परंपरा थी। वहां पर गुरु शिष्य परंपरा के अंदर गुरुकुल में जहां पर सारे गुरु रहते थे वो विद्यार्थियों को शिक्षा वगैरह दीक्षा देते थे। जो शिक्षा का उस समय चलन था उसमें क्या था? श्रवण, मनन, चिंतन और शास्त्रार्थ। मीन आपको लेक्चर्स दिए जाते थे, उनको आप सुनिए, कंठस्थ करिए, उसके बाद उन्हें रिवाइव करिए, रिसाइट करिए, मनन करिए उन्हें बार बार, जिससे कि वो आपको याद हो। फिर उसी के ऊपर आप चिंतन करिए, उसे एनालाइज करिए। उसके बाद गुरु अपने शिष्यों को लेकर शास्त्रार्थ के लिए जाते थे, क्योंकि पेन पेपर पेंसिल्स के उस समय चलन नहीं था। तो इस तरह से श्रवण, मनन, चिंतन और शास्त्रार्थ के थ्रू शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद आगे चले कंसेप्ट, बुद्धिज्म कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन आया। फिर सल्तनत पीरियड के दौरान यहाँ पर मकतबा मदरसा सिस्टम आया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो समुद्रगुप्त ने स्थापित की थी, उसके बाद उसे हर्षवर्धन ने उसको सींचा, पाला पोषा, बड़ा किया। पाल डायनेस्टी बंगाल ने उसको और डेवलप किया और जाके बख्तियार खिलजी ने उसे डैमेज करके उसको खंडेरों में बदल दिया, जिससे कि हमारी जो एक शिक्षा की जो क्रांति थी जो विश्व में, वो जैसे समाप्त हुई। पुनर्जागरण शिक्षा का एल्फिंस्टन मिनट 1823 से हुआ, जहां इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में आया। और लॉर्ड मैकॉले, टीबी मैकॉले ने जो बाबूज कल्चर के अंदर इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्कॉलर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया 1835 से, वहां यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हुआ। 1854 में जो एक वुड्स डिस्पैच आया, जिससे यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में आया, जहां पर इंग्लिश के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट करने की शुरुआत हुई और यहाँ से पुनः हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना होना शुरू हुई, तो वहां से शुरू हुआ। इसके बाद 47 में भारत देश आजाद हुआ। 48 के अंदर एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया और उस समय के इसको जो विद्वान प्रकांड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसका चेयरमैन बनाया गया। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उस समय 1953 में 8 दिसंबर यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन किया गया और उसका ये फोटो आपके सामने है, जहां मौलाना आजाद चेयर पर बैठे हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन। ये हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पार्लियामेंट के कानून के एक्ट के अंतर्गत 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय द पार्लियामेंट इन 1956 में पूरी तरह से अपेक्स बॉडी के लिए एस्टेब्लिश हुआ और जिसने शिक्षा के समग्र क्षेत्रों को उच्च शिक्षा के लिया। इसका जो थ्रस्ट एरिया है, जो वर्तमान शिक्षा में जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो थ्रस्ट एरिया है, वो एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन, बहुविधि शिक्षा और बहुआयामी शिक्षा के साथ उसको समग्र रूप से एक चौमुखी विकास के साथ शिक्षा प्रदान करना है। डिजिटल एम्पावर, ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल जो टूल्स हैं उनका टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन इसमें लाना है। स्किल डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयबिलिटी, शिक्षा और स्किल दोनों के बीच में अंतर है। कौशल आदमी के अंदर निर्धारित करना, कैसे उसे विकसित करना, कैसे नई नई विधाओं को उसको लेके आना, उसका डेवलपमेंट और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। रिसर्च, इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की स्थापना करना। गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना। क्वालिटी रैंकिंग लाइक NAAC एक्रेडिशन, NB एक्रेडिशन, बहुत से एक्रेडिशन। और इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स के जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो फिजिकली मेंटली हैं और इस तरह के जो लोग हैं जो कि किसी तरह से समाज में वंचित रह गए, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, उनको मेन स्ट्रीम में लाके सभी को समग्र शिक्षा अभियान के अंदर लेके आना और कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। जो भी भारत के अंदर जन्मा है, पढ़ा बड़ा है, उन सभी को इस शिक्षा में लेके आना। दैट इज द फोकस ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ज्ञान का भंडार था, जिसको आक्रांताओं ने समय समय पर डैमेज किया, खंडहरों में बदल दिया, उसको पुनर्स्थापित करना। जो हमारी पांडुलिपियां हैं जिनके आधार पर विश्व में लोगों ने पढ़कर उनको ट्रांसलेट करके और नए नए डेवलपमेंट्स दिए हैं,
उनको पुनर्स्थापित करते हुए अपनी ग्राम परंपरा को आगे बढ़ाना, उसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया, प्लस लैंग्वेज फॉर्मूला किया गया कि 1 2 3 लैंग्वेज सिस्टम शुड बी देयर। और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि ग्लोबली अगर कनेक्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी का सिस्टम अपने आप में अछूता रहता है। तो जो एजुकेशन है उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से कनेक्ट करना, जिसके लिए CBCS और दूसरी व्यवस्थाएं दी गई। यहाँ पर ये 2 फोकस में बने हुए हैं। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जहां पर आपके जो भी क्रेडिट अर्न करेंगे वहां डिपॉजिट होंगे एक बैंक में, और वहां से एक 12 डिजिट की ABC ID बच्चे को मिलेगी, स्टूडेंट्स को मिलेगी, जिस ID से उनको कहीं भी ट्रांसफर मींस एक्यूमुलेट करेगा, रिडीम करेगा, और ये इस तरह से उसको करेगा। प्लस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। पुराने समय में शिक्षा के अंदर क्या व्यवस्था थी कि अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ले लिया, अगर आपने डिग्री का कंप्लीट 3 इयर्स 2 इयर्स का या 4 इयर्स का कोर्स नहीं किया तो डिग्री नहीं मिलती थी। बीच में शिक्षा छूट गई तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। वर्तमान नई शिक्षा नीति के अंदर अगर ये किसी व्यक्ति ने 2 सेमेस्टर 1 साल के अंदर पास कर लिए और आगे एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 सेमेस्टर पास कर लिए, 2 साल की शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। 6 सेमेस्टर 3 साल की डिग्री कर ली तो उसको डिग्री मिल जाएगी। 8 सेमेस्टर उसके साथ उसने 4 साल का कोर्स कर लिया तो उसको वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या रिसर्च डिप्लोमा डिग्री या उसको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। 5 साल के अंदर 10 अगर आपने वो पढ़ लिए हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको मिलेगी, और लास्ट जाके PhD प्रोग्राम्स है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो ईयरली इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट के साथ जो पास करते हैं, तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वगैरह लॉन्च हुए। ये आप जानते हैं कि इक्विटी एफिशिएंसी एक्सीलेंस के लिए काम करते थे, उसको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी बढ़ाना, इनोवेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर फोकस थी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट है, गवर्नेंस में है, और बहुत तरह की चीजों का डेवलपमेंट था। पहले जो बैकग्राउंड में ये चीजें नहीं होती थी। उसके बाद 1948 में जो राधाकृष्णन कमीशन के बाद फिर मुदलियार कमीशन आया जिसने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर काम किया। दुर्गाबाई देशमुख कमीशन आया जिसमें माध्यमिक शिक्षा और कुछ शिक्षा के बाद लिया, लेकिन सही रूप से उच्च शिक्षा के ऊपर DS कोठारी कमीशन 1964-66 में आया, जिसने पहली शिक्षा नीति का रास्ता स्थापित किया। ये जो कुछ कमीशंस हैं जो डेवलपमेंटल स्टेज में आए, 2 मैंने आपको बता दिए, DS कोठारी का आया। उसके बाद 1968 में पहला शिक्षा नीति आई, और उस शिक्षा नीति का उस समय सही ढंग से इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद भारत के अंतर्गत राजनीतिक स्थिरता का माहौल कुछ वर्ष तक व्यापित रहा, और उसकी भेंट चढ़ गया ये DS कोठारी कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी लेकिन सही ढंग से लागू नहीं हो सकी। 1968 की शिक्षा नीति भी इसी वजह से इसी का त्रासदी का शिकार हुई। अब इसमें एक बड़ी चीज थी कि शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा जो थी, भारत के संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी अनुच्छेदों में कि जो शिक्षा है वो राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के कारण केंद्र सरकार या पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बढ़ाने में अड़चन आती थी। आपको जानकारी है कि 3 सूचियां होती हैं। एक सूची जिसमें केंद्र सरकार, जिसको यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, केवल पार्लियामेंट, संसद या केंद्र सरकार जिसके ऊपर कानून बना के लागू करती है। दूसरी राज्य लिस्ट होती है, इसको एटलीस्ट लिस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर राज्य सरकारें और उनकी विधानसभाएं अपना कानून बना के अपने प्रदेश का संचालन करती हैं। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिनमें दोनों का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र के अधिकार राज्य के अधिकार के ऊपर सुपरसीड कर जाता है। तो ये स्थितियां थी। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर उसको एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा विषयक बिंदु के ऊपर नीति बना सके। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी की जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान आई, और जिसने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, NSS, NCC इन सबको इंट्रोड्यूस किया, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस को और नए ढंग से चलाने के बहुत सी चीजों का किया। बहुत से कमीशंस आए, ब्लैक बोर्ड कंसेप्ट आया, लॉट मेनी टाइप्स ऑफ द कमीशन। ये जो जो 1986 की जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को लगभग 6 साल लगे इसको मैच्योर होने में। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में वेल डिफाइन होके मॉडिफाई होके आया, और 1992 में CAB का एक गठन हुआ जिसके अंतर्गत प्रोफेसर A को बनाया गया, और उन्होंने भारत की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और समग्र शिक्षा के ऊपर अध्ययन करते हुए CBCS चॉइस बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम को रिकमेंड किया, और सबसे पहले पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में 1992 में इसको लागू किया। देन आफ्टरवर्ड्स
चलता रहा। फिर सन 2000 में बिरला अंबानी कमीशन आया जिसने इसमें रिकमेंडेशन दी। फिर 2005 में सैम पिट्रोडा ने 2009-6 में अपनी रिकमेंडेशंस दी, जिसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं। और प्रोफेसर यशपाल ने 2009 में अपनी शिक्षा को पुनर्जागरण और पुनर्जीवन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, और उसमें नए इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड और इसको सोसाइटी ओरिएंटेड और ग्लोबल कनेक्ट से रिकमेंडेशन करने की बात कही। 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई और नई शिक्षा नीति के ऊपर पुनर्विचार प्रारंभ हुआ, और TSR सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे। उनकी अध्यक्षता में बनी एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हुआ, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये ड्राफ्ट प्रपोजल रुका रहा, और उनकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी 27 मई 2016 को सबमिट हुई। अगेन 2017 में भारत सरकार ने इस कमेटी का पुनर्गठन किया, और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के चेयरमैन रहे थे पद्म विभूषण, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बना के और पुनः इसका ड्राफ्ट प्रपोजल के ऊपर स्टडी करना शुरू हुआ, और लगभग 2,24,000 के आसपास डिस्कशन डिस्कोर्सेज इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पार्लियामेंट लेवल पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस पर, मींस सभी जगह इसको डिस्कस करते हुए 31 मई 2019 को चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और जिस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद 1 वर्ष तक इसके ऊपर पूरा डिस्कशंस वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हुआ। तो इस तरह से ये पूरी शिक्षा नीति आगे चली, और इसके बाद शिक्षा नीति बढ़ते बढ़ते 2020 में लागू की गई, इसको अडॉप्ट किया गया। ये राधाकृष्णन कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशन में 180 दिन का जो एकेडमिक ईयर की बात की गई थी, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की सीट्स के स्पेसिफाइड नंबर की बात की गई थी, डायनेमिक करिकुलम बनाने की बात की गई थी, उसके साथ और भी दूसरी चीजों की बात की गई थी। इनकी रिकमेंडेशंस में यही था, एक्सप्रेस ग्रेट ओवर द ट्रेडिशनल नॉन एडेप्टिव एजुकेशन को कैसे डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव बनाया जाए, जो कि मांग के आधार पर आधारित हो, डिमांड ओरिएंटेड हो। ये 1948 में डिसाइड किया गया था। इसके बाद DS कोठारी कमीशन आया 66 में। DS कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस मैंने आपको बताई, और यहाँ से बहुत सी, यहाँ सबसे बड़ी चीज रही कि DS कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो विकलांगजन हैं, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाया जाए, और उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। तो एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास करके इनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, इनको इसकी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया, जिस पर प्लानिंग कमीशन ने 74 में कानून बनाया, 71 में इसको लागू किया। जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का जो रास्ता है वो कोठारी कमीशन के बाद पूरे रूप से सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो नोमैड्स हो, चाहे वो बच्चे ब्रोथल हाउस के बच्चे हो, चाहे बेगर्स के बच्चे हो, चाहे किसी लेबर के हो, मीन्स भौतिक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या किसी तरह की कोई भी डिस्पैरिटीज वगैरह कहीं किसी तरह से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, ये प्रयास हुआ। This is the crossroads where the higher education evolved. नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की गई, जिसमें एक कॉमन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सिलेबस को फिक्स किया गया और बहुत सारी रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग की गई। देन इनके अंदर डिस्पैरिटीज को हटाने की बात की गई, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 मैच्योर होते हुए मैंने बताया कि ये CAB का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस आई। देन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले CBCS किया। फिर ये बिरला अंबानी कमीशन रिपोर्ट है कि जहां पर उसको किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, बट लेट द हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बी ओपन टू द सोसाइटी, मींस मार्केट की डिमांड और इन चीजों को डिटरमाइन करते हुए ओपन करने की बात की गई। और उनकी रिकमेंडेशंस के बाद जो प्रोफेशनल क्रेडिट ट्रांसफर, इन सारी चीजों की बात यहाँ की गई। नेक्स्ट लेवल के ऊपर ये नेशनल नॉलेज कमीशन है, जो 2006 से 2009 के बीच में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस की, और उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस में जो नॉलेज का एक पैटागन के बेसिस पर बात की गई। ये फर्स्ट टाइम कि एक्सेसिबल एजुकेशन होना चाहिए, कंसेप्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, शुड बी क्रिएटेड ऑन दोज ग्राउंड, फिर एप्लीकेबल होना चाहिए सोसाइटी में, और क्या सर्विसेज रेंडर और कर रही है उसको स्टडी करना चाहिए। तो ये सारी बातें नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड की। ये पैटागन, दिस इज द पैटागन ऑफ द नॉलेज वेयर ऑल द थिंग्स आर बीइंग फिक्स्ड एज पर द recommendations.
उसके बाद ये नेशनल नॉलेज कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और वहां पर उन्होंने चॉइस के ऊपर जोर दिया जो कि स्टूडेंट्स के पास नहीं थी। प्रोफेसर यशपाल कमीशन की रिपोर्ट आई, वहां उन्होंने रीइनोवेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द हायर एजुकेशन को रिकमेंड किया और प्रोफेशनल क्रेडिट्स को और ट्रांसफर सिस्टम्स को प्रमोट किया। 2011 में 11 5-ईयर प्लान के अंतर्गत ये CBCS मोड ऑफ एजुकेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया और जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज थी उनको इसको इंप्लीमेंट करने के आदेश हुए, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बहुत लोगों ने किया। ये जो CBCS को इंट्रोड्यूस करने की बात थी उसके पीछे सबसे बड़ा मंतव्य ये था कि 13 जून 1989 को एक नेशंस ने, लगभग ये आपके सामने 10 देश दिखाई दे रहे हैं, इन 10 कंट्रीज ने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया जहां उन्होंने निर्धारित किया कि एक कॉमन एजुकेशन प्रोग्राम हो, सर्विसेज का हो। मींस जो एक अकॉर्ड साइन हुआ वाशिंगटन में उसको वाशिंगटन अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और इसमें इसके जो सिग्नेटरी हैं वहां पढ़े हुए विद्यार्थी अगर उनकी शिक्षा गुणवत्ता, क्वालिटी और सारी चीजें मैच करती हैं तो वो एक दूसरे के देश में जाके पढ़ सकते हैं, एक दूसरे के देश में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक दूसरे के देश में जाके अपना व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। सारी चीजें फ्री कर दिया गया। दैट मीन्स कि एजुकेशन को वाशिंगटन अकॉर्ड से एक इन देशों ने, सिग्नेटरी कंट्रीज के बीच में फ्री कर दिया फॉर द सर्विसेज, फॉर द एजुकेशन एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ द थिंग्स। 2014 फिर 1994 में बहुत कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। पर्टिकुलरली पहले ये टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी चीजों के ऊपर लागू था, बाद में कुछ और इसमें सब्जेक्ट्स जुड़े। लेकिन यहाँ ये जो इंडिया है, भारत ने 3 जून 2014 को इसको ज्वाइन किया। वाशिंगटन सिग्नेटरी होने के बाद जो IITs, IIMs वगैरह का आप स्टेटस देख रहे हैं या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का देख रहे हैं, दे आर बीइंग एक्रेडिटेड बाय NBA और वो वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। These are the levels and now you can see over there that 2014 India, this is represented by the National Board of Accreditation, applied only to the program accredited by NBA। केवल NBA के द्वारा Tier 1 के जो programs, institutions हैं, they are only the part of this Washington Accord। That's why this craze for the IIMs and IITs and the premier institute is there। उसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो इंजीनियरिंग की फील्ड में सारी चीजें आ गई थी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके जनक कोरिया, जापान और इस कंट्रीज थे जो छूट गई थी, तो सियोल अकॉर्ड एक डिसाइड किया गया और सियोल अकॉर्ड के अनुसार यदि आप वाशिंगटन अकॉर्ड के सिग्नेटरी हैं तब आप केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं। लेकिन सियोल अकॉर्ड भी आपने साइन कर लिया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड भी आपके लिए वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को ओपन है फॉर Tier 1 इंस्टीट्यूशन। दिस इज द एजेंसी। एक जैसे NAC होता है उसी तरह से भारत सरकार के द्वारा स्थापित है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, जिसको NBA कहते हैं। ये AISHE 2019 की रिपोर्ट है। AISHE 2018-19 में पैरामीटर्स बहुत सारे दिए। यहाँ 993 यूनिवर्सिटी, 39,931, जो कि अब बदल के 2020-21 की रिपोर्ट में 1113 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, जिसमें लगभग 45% प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और लगभग 55% स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और 43,500 के आसपास आपके स्टैंड कॉलेजेस हैं और 11,000 के आसपास आपके स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया और इसके अंतर्गत ही चले। नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था उसका क्या था कि टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी with equitable education, with flexible mode and multidisciplinary type of the education for the holistic development of person's personality। ये एक मोटो के साथ नई शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये जो एक शिक्षा का जो मॉडल है, ये वर्तमान में भारत के अंदर जो चल रहा है उसका मॉडल है। यहाँ जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये डॉक्टर के कस्तूरीरंजन पद्म भूषण जो थे, उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल के पीछे अपनी कमेटी के साथ मिलकर 31 मई 2019 को दिया और फिर डिस्कशन के बाद ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई। इस शिक्षा नीति का ये टाइमलाइन का ग्राफ है, ये आप सामने देख रहे हैं। 1 to 18 पॉइंटर्स आर देयर और ये लास्ट डेज में जो मीटिंग्स इसकी हुई उनके बारे में 1 to 1 ये दिया। ये स्किप करता हूं। Now this is the mandate, this is the focus of the राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अडॉप्ट की गई। पहली चीज तो ये थी कि 21st सेंचुरी के अंदर जो हम चल रहे हैं तो वहां पर इसका ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। जो विश्व गुरु का हमारा कंसेप्ट था जिसको हमने खो दिया था, एंशिएंट टाइम्स में था कि विदेशों से मीन ताइवान, जापान, कोरिया, चाइना, बहुत दूसरे देशों से जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे
और हम शिक्षा उनको प्रदान करते थे, वो सारी चीजें दोबारा उनको पुनर्स्थापित करना था। और उसके साथ साथ जो कंसेप्ट है उसमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात की गई कि ताकि विद्यार्थियों को होलिस्टिक एजुकेशन फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से दिया जाए, कि एक विधा से ना करके बहुविधा में उनको अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए और विभिन्न आयामों में। जो एडल्ट एजुकेशन है उसको 100% प्राप्त करना, और फाइनेंसिंग की जो व्यवस्था थी वो 2.6% 2020 के पहले दो बजट का 2.67% के आसपास केवल एलोकेशन था, उसको बना के डबल करने का आदेश किया गया। तो इस तरह से ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन नई शिक्षा नीति के अंतर रहे, और उसका फोकस था नॉलेज, विजडम एंड ट्रुथ, ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य के ऊपर आधारित, और रिवाइवल ऑफ द रिच हेरिटेज, एंशिएंट एंड द इटर्नल नॉलेज, दैट इज द फोकस बिहाइंड दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसके रेलिक्स आप देख रहे हैं। ये जो सल्तनत पीरियड और दूसरे पीरियड्स के दौरान जो शिक्षा के अंदर जो बड़े डैमेज हुए हैं उनको पुनर्स्थापित करके और अपनी जो पुष्प ग्रुप की छवि है उसको पुनर्स्थापित करने की बात की गई। ये नालंदा के रेलिक्स है, ये देखिए आपके सामने। विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, ये बल्लभी यूनिवर्सिटी है, बटापी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिस्टम भारत के अंदर ही था। पर्पस क्या था यहाँ? होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, 2 पॉइंट अप्रोच इज देयर, कि किसी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ये शिक्षा नीति के अंदर था। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या था कि भागवत हमारे जो महाकवि रहे हैं, उन्होंने कादम्बरी के लेखक भागवत जी को आप जानते हैं, 5th सेंचुरी में उन्होंने एक अपना शिक्षा के आयामों के ऊपर दर्शन दिया था, और उन्होंने स्थापित किया था कि एक विद्यार्थी या एक लर्नर को या एक व्यक्ति को 64 कला और 14 विद्याओं में निपुण होना चाहिए। तो 64 कलाओं का आयाम जो है, तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके चैप्टर 11 के अंतर्गत आर्टिकल 1 में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि भागवत के द्वारा दी गई 64 कलाओं 14 विद्याओं में निपुणता के दृष्टिकोण से ही इस शिक्षा नीति का आगाज किया गया है कि हम अपने विद्यार्थियों को, लर्नर को और स्टूडेंट्स को इन 64 कलाओं में परिपक्व बनाएंगे, जिसका उदाहरण आप महाभारत से लेते हैं, जिसका उदाहरण आप और हमारे पुराने काल में लेते हैं। जब गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी पढ़ने जाता था तो उसको सारे कौशल डेवलप किए जाते थे, चाहे किसकी किसानी हो, चाहे किचन का हो, एवरी टाइप ऑफ द वर्क, मींस ऑल द 64 आर्ट्स बीइंग इम्पार्टेड इन द स्टूडेंट थ्रू द गुरुकुल टीचर्स। तो ये एक उस समय की थी, और ये 64 कलाओं का डिपिक्शन है। ये जो 64 कलाओं के अंदर जो एक सबसे पहली थी ह्यूमन वैल्यू सिस्टम का, इसका जो फेस उसमें एस्टेब्लिश करना था। उसमें विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, मोरालिटी है, इंटीग्रिटी है, देन कोएग्जिस्टेंस है, डिसिप्लिन है, ट्रुथ है, पीस है, ये सारी चीजें इस के अंदर एक ह्यूमन वैल्यूज को टारगेट करके उनको डेवलप करनी थी। जो मेजर हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस करके बताया था कि पहली चीज इस शिक्षा नीति के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम्स। मींस अब पहले 30%, 40% और धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो रिसर्च एंड इनोवेशन का हमारा जो क्षेत्र है, जिसमें बहुत आगे हमें जाना है, अभी भारत बहुत पीछे है और चाइना वगैरह बहुत आगे हैं। से फॉर एग्जांपल कि चाइना ने अभी 1.5 बिलियन से ऊपर पेटेंट फाइल किए, जबकि भारत के अंदर से कुल 60-65 हजार ही पेटेंट फाइल हुए हैं। तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो हमारी शिक्षा बड़ी इनोवेटिव और बहुत अच्छी हो, उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो कि अगस्त 2023 में कर दी गई, और इसके लिए कानून लाया गया, गजट के द्वारा इसको पब्लिश कर दिया गया, और उसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये रिसर्च फाउंडेशन है जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इस पूरे भारत के अंदर जो शोध कार्य की जो परंपरा है उसको स्थापित करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ के फंड के साथ इसको डेवलप करेंगे, जो 2023 से लागू हो चुकी है। दूसरा, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए 29 जुलाई 2021 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट के हिसाब से एजुकेशन का CBCS मॉड्यूल लागू कर दिया गया है। कंटिन्यूअस होलिस्टिक डेवलपमेंट की विभिन्न विधाओं परंपराओं को LOCF के माध्यम से और दूसरे माध्यम से दिया गया है। और मीडियम ऑफ टीचिंग एट द स्टूडेंट लेवल, आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, स्कूल लेवल के ऊपर आप एक एडिशनल लैंग्वेज आप ले लीजिए, इंग्लिश और हिंदी, और उसके बाद एक तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया। और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के ऊपर विशेष दिया गया ताकि उनको रीस्किलिंग, अप स्किलिंग और स्किलिंग की बात की जाए। यहाँ जो एक सामने आप चित्र देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ये भारत की शिक्षा नीति का एक समग्र प्रपोजल है।
यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 1986 के बाद जब पॉलिसी आई तो 29 जुलाई 2020 को अडॉप्ट किया तो 6% जीडीपी की बात की, और जो अभी जीईआर की बात सर कर रहे थे दैट वाज देयर इन 2020-21 27.3%, जिसका टारगेट किया गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कि 2037 तक इसको 50% हमें करना है ताकि हम वर्ल्ड लेवल के थोड़ा आसपास पहुंच सके, जो कि 60+ है वर्ल्ड एवरेज। और यहाँ फिर इसको इस तरह के क्यूरिकुलम और विजन को शिफ्ट करके ट्रांसफॉर्म किया गया, जिससे कि दूसरा इसमें बड़ा चेंज किया गया कि 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था सेकेंडरी एजुकेशन का, उसको 5+3+3+4 किया गया। 5+ वाली स्टेज के अंतर्गत विद्या प्रारंभ, विद्या प्रवेश मीन्स जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर परंपरा थी कि वहां पर केजी, एलकेजी, यूकेजी दिया जाता था, उनके नाम बदल के उनको विद्या प्रदेश, विद्या आरंभ और इस तरह की नाम देके और इसको स्कूलिंग सिस्टम में लिया गया। एंड अप टू द लेवल ऑफ द क्लास 2 देयर विल बी नो एग्जामिनेशन सिस्टम्स। देन नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेटरी और प्राइमरी स्कूलिंग आई, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग दूसरी चीजें इंट्रोड्यूस किया गया। मिडिल लेवल आया नेक्स्ट, वहां पर मिडिल लेवल पर जाके उसके अंदर और चेंजेस आए, और फाइनली सेकेंडरी लेवल पर एज ग्रुप तो सेम है। पहले जो 18 इयर्स की एज में जाके स्टूडेंट को 16 to 18 पर जो 12th पास करता था आज भी वही रहेगा, लेकिन उनकी एंट्री और एग्जिट की एज के अंदर चेंज आ गया है। दूसरा साइड में आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन के अंदर ये जो नीचे देख रहे हैं मॉडल, ये चॉइस बेस्ड है, जहां पर 3 कलर आप देख रहे हैं, 2 ब्लू कलर है जो चॉइस बेस्ड है और एक डार्क कलर आप देख रहे हैं वो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि जो स्ट्रीम आप लेते हैं उसके अंदर। ये आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कंबाइंड दीज 3 इन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को, नई शिक्षा नीति को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, इसको ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर आके खड़ा कर दिया। ये हमारे 5+3+3+4 सिस्टम का जो आगाज है, ये 4 पेडिस्टल्स उसके बारे में दिखा रहे हैं कि किस में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, फिर मिडिल एडोलसेंट क्या है और अर्ली एडोलसेंट क्या है, ये एजुकेशन के डिपिक्शंस है। और उसके बाद जब एडल्टहुड में आके 18 इयर्स प्लस के बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आप जाते हैं तो आपके वेरियस फ्रंट्स के ऊपर जाके आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उनका ये डिपिक्शन है। यहाँ ये ब्रॉड हाइलाइट्स है जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि GER by 2035 इसमें मेंशन किया हुआ है, नाउ दिस हैज बीन एड्रेस्ड बाय 2 years, दैट इज 2037। और यहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये वही चीजें हैं जिनकी मैंने बात की है। ये जो मेन फोकस एरियाज है और उनके चैप्टर्स हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ ये अलग अलग चैप्टर हैं जिनके अंदर चैप्टर 1 में अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन मींस एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द एजुकेशन हैज बीन डील्ड विद इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, के जहां पर टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है, रिसर्च के लिए क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करना है, जॉब ओरिएंटेड या वोकेशनल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे, फोकस क्या है टू डेवलप द इनोवेटर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। ये नई शिक्षा नीति का है। और ये वही जो मैंने आपको भी बताया कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन टाइप सिस्टम। नेक्स्ट लेवल पर ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम का है और दीज आर द की फीचर्स एसोसिएटेड विद रिगार्ड टू दी, जो उसके अंदर सबसे कि जैसे कि अभी 2 साल के अंदर डिप्लोमा है, 3 साल के अंदर डिग्री और 1 साल के अंदर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया, मल्टी डिसिप्लिनरी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और उसके साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी मींस रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज अलग होंगी और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज अलग होंगी। इस तरह से मेरे कंसेप्ट के अंतर्गत कोलैबोरेटिव क्लस्टर्ड फॉर्म में और सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो भी आप शिक्षा देंगे वो यूनिटरी ना हो के उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना होगा। और आर्ट है तो उसको साइंस भी चाहिए, अदरवाइज क्लस्टर में, मर्जर में, कोलैबोरेटर में जाएगा। बीएड डिग्री प्रोग्राम 4 साल का हो जाएगा, एमफिल समाप्त हो चुका है। इस तरह से इसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंसेस कैसे मिलने हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज एरियाज कैसे डेवलप होने हैं, प्लस उसके अंदर स्टेम के ऊपर फोकस किया गया, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की स्ट्रीम है इसको ह्यूमैनिटीज और आर्ट से जोड़ के ब्लेंडेड मोड करके होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई है, जहाँ पर वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, इथिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल कंपैशन मींस दिस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके सारे क्षेत्रों के अंतर्गत इसको एक आयाम प्रदान किया गया है। ये आपके सामने दिया गया है जो इम्प्लीमेंटेशन का, जिसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कि जो 2020 में शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति को लागू करने, उसके जो अंदर चीजें हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 2021 को उनको लागू कर दिया गया। और उसको लागू करने के पहले 21 जनवरी 2021 को
एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना कर दी गई ताकि आपके लिए कोई व्यवस्था हो कि जहां पर आप अपनी क्रेडिटों का आदान प्रदान या विनिमय कर सकें। ये जरूरी क्यों था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम? उसकी वजह ये 4 चीजें हैं। ECTS, दैट इज द यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जो यूरोप और बाहर के देशों में पहले ही ऑलरेडी क्रेडिट सिस्टम चल रहा था। क्रेडिट क्या होती है? क्रेडिट इज जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर चीज को आप कितने घंटे में पढ़ेंगे, दैट इज द क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स आवर्स ऑफ द वर्कलोड टू द स्टूडेंट, दैट इज डिफाइंड इन क्रेडिट, उसको कैलकुलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में। तो एक क्रेडिट का, जैसे भारत के अंदर एक क्रेडिट का मतलब है, अगर आप एक क्रेडिट आप चूज कर रहे हैं तो 1 आवर पर वीक फॉर 15 वीक्स, दैट मीन्स कि 15 आवर्स इन ए सेमेस्टर। 90 डेज का एक सेमेस्टर है और उसमें 15 हफ्ते होते हैं। तो एक क्रेडिट मतलब 60 मिनट आपको 15 हफ्ते एक पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ना है। अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है, केवल लेक्चर के माध्यम से है, तो 240 मिनट्स पर वीक फॉर 15 वीक्स, मतलब हर हफ्ते आपको 240 मिनट उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना है और 15 हफ्ते में उसको खत्म करना है 90 डेज के अंदर। दिस इज व्हाट इज क्रेडिट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्रेडिट जो सिस्टम है वो काफी पहले से लागू हुआ था। 1969 में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वहां सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि विश्व में उस समय सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, जबकि 2009 में भारत में लागू हुआ पैन इंडिया लेवल पर, पीजी में वो भी, ठीक है ना। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई। तो ECTS है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जो कि भारत के देशों में अगर किसी को बाहर पढ़ने जाना होता था तो IIT एम्स वगैरह में ऑलरेडी लागू था, तो वो तो आसानी से जाके कहीं शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इंस्टीट्यूशन से कोई पढ़ के जा रहा है तो उसको कंसल्टेंट को बहुत पैसा देना होता था। पहले वो शिक्षा को आवर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपेटेबिलिटी बनाएगा और बड़ा टीडियस हो जाता था। लेकिन इस CBCS के लागू होने से ये व्यवस्था बड़ी स्मूथ हो गई और ग्लोबली हम कनेक्ट हो गए। एक दूसरा सिस्टम था NQF, दैट इज द नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क सिस्टम, जो ऑस्ट्रेलिया और उनके एलाइड कंट्रीज में प्रिविलेज्ड है। दूसरा पैन कैनेडियन प्रोटोकॉल ऑन द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सिस्टम, जो कि कनाडा और उनके एसोसिएटेड कंट्रीज जो उसके बोर्ड को मानने वाले वहां था। जापान, USA और दूसरी कंट्रीज में क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम लागू था। तो विश्व में क्रेडिट सिस्टम चल रहा था, उससे भारत अछूता था। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रेडिट सिस्टम को भारत में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये क्रेडिट सिस्टम की जो मैंने डिटेल आपको बताई कि उनको क्रेडिट मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं। ये 180 क्रेडिट, 240 क्रेडिट, ये क्रेडिट्स के, जैसे अगर 180 क्रेडिट मीन 60 क्रेडिट, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 60 क्रेडिट के अंदर एक वर्ष का मीन सर्टिफिकेट कोर्स होता है। 120 क्रेडिट्स का डिप्लोमा कोर्स होता है, 180 क्रेडिट्स का उनके यहाँ डिग्री कोर्स होता है। तो 15-15 क्रेडिट के 4 क्वार्टर्स में वो डिवाइड होते हैं। तो वो क्रेडिट सिस्टम के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्या हो, ग्रेजुएट लेवल पर क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट पर क्या हो। दिस इज द कैलकुलेशन स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू दिस। यहाँ ये देखिए, ये आपके सामने दिया है कि यूके में एक क्रेडिट के बराबर जो दिया है 60 क्रेडिट का अगर कोर्स है तो उसको 1200 घंटे में पढ़ाना है। दैट इज 60 मीन्स यहाँ पर 1200, ठीक है ना। ये 20 आवर्स का वर्कलोड है। 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स इन लेक्चर एंड ट्यूटोरियल। अगर वही प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट स्टडीज है तो ये डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 40 आवर्स इन इक्विवेलेंट टू 1 क्रेडिट। लेक्चर का जस्ट डबल इन द प्रैक्टिकल। ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, माल्टा यहाँ पर 60, यहाँ 25 क्रेडिट का है। फिनलैंड, लिथुआनिया, स्वीडन में 27 घंटे का एक क्रेडिट है। नीदरलैंड, पोलैंड में 28 घंटे का है। और ये जर्मनी के अंदर 30 घंटे का एक क्रेडिट है। तो जब आप इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ स्टडी इन क्रेडिट आवर्स से कनेक्ट करके वो आपको एडमिशन देते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है वो क्रेडिट आवर्स आपके मार्कशीट पे होने के कारण ये चीज रहेगी। ये क्रेडिट आवर्स के लिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, टाइम का मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ। ये NFQ फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। ये हमारा मॉडल है जो टर्की में गवर्न हो रहा है, दैट इज ओवर देयर, जो NQF के नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क सिस्टम। दिस इज द लेवल, ये ग्रेडिंग पैटर्न भी है स्टार्ट किया गया। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द परसेंटेज वहां पर लेटर ग्रेड दिया गया और ये लेवल 5 से शुरू होता है। इंटरनेशनली द एजुकेशन स्टार्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम लेवल 5। लेवल 5 मतलब लेवल 4 तक आपने 12th पास किया, लेवल 5 पर सर्टिफिकेट, लेवल 6 पर डिप्लोमा, लेवल 7 के ऊपर डिग्री, लेवल 8 के ऊपर ऑनर्स डिग्री, रिसर्च डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री, और लेवल 7 के बाद लेवल 8, लेवल 9 के ऊपर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और लेवल 10 पर PhD। लेकिन इंडिया के अंतर्गत ये 5 पॉइंट स्केल के ऊपर है, 0.5 स्केल पर चलता है। 4 के ऊपर आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, 4.5 पर सर्टिफिकेट, 5 पर आपको डिप्लोमा, 5.5 पर डिग्री और 6 के ऊपर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और द ऑनर्स और द रिसर्च एंड 6.5। तो ये पॉइंटर स्केल सिस्टम के ऊपर ये 0.5 के पे स्केल पे चलता है।
ये पूरा एक मॉड्यूल दिया है जो मैंने लेवल 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात आपको बताई है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ये सारी बातें आयरिश मॉडल के ऊपर ये गवर्न होती है। ये PCCAT है, ये किस लेवल पर क्या क्रेडिट सिस्टम है यूरोप में, उसका एक कंपैरिजन चार्ट दिया था। सेकंड थिंग, या लेटर ग्रेड सिस्टम दिया गया। इंडिया के अंदर परसेंटाइल सिस्टम लागू था, लेकिन इंटरनेशनली वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम था। लेटर ग्रेड मींस A, O, A, B, C इस तरह से था। O मींस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस 90.1 to 100, A प्लस मींस 80 to 90, 70 to 80 A। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम, इन परसेंटाइल ग्रुप के बीच में आने पर आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम मिलता था, ये सिस्टम था। ये आयरिश मॉडल है, जिस मॉडल के ऊपर इस तरह से इंटरनेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन NFQ के बारे में है। देन जो पुराना हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, वहां पर हमारा क्या था, कैप्टिव सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम एनुअल सिस्टम का था कि 180 दिन तक विद्यार्थी को पढ़ना है। पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर। नोट्स टीचर देगा, बुक्स टीचर प्रोवाइड करेगा, ब्लैक बोर्ड कंसेप्ट चौक ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगे, लिसनिंग लर्निंग के थ्रू सारा काम होगा। और हमारा राइटिंग के थ्रू टेस्ट होता था या ओरल टेस्ट होता था, नथिंग एल्स। दिस इज जस्ट लाइक द जेल मैस कंसेप्ट के जेल के अंदर मैस होती है, तो वहां पर जो खाना फिक्स है वही मिलना है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है। तो एनुअल कन्वेंशनल सिस्टम इस तरह का था। और उसके अंदर ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दीज आर नथिंग कनेक्टेड विद यू। दूसरा सिस्टम जो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 19 कोठारी कमीशन के बाद, सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ 1968 के बाद, और 69 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, तो उसको सेमेस्टर सिस्टम पर बनाया गया और सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, टू डिवाइड द एकेडमिक ईयर इनटू 2 पार्ट्स, मींस 180 डेज को 1990 के 2 पार्ट में डिवाइड करना, इवन ऑड सेमेस्टर। और उसके साथ व्यवस्था क्या हुई कि आपकी सारी व्यवस्थाएं डबल हो गई, सिलेबस हाफ हाफ हो गया, तो आपको सही ढंग से पढ़ाई हुई, थोड़ी चॉइस आपको मिल गई। साल में 2 एग्जाम होने लगे, अभी एक जैसे एनुअल एग्जाम होता था, अब 2 एनुअल सेमेस्टर एग्जाम होने लगे। इस तरह से सेमेस्टर सिस्टम के अंदर चेंजेस आए और उसका कंसेप्ट ये रहा कि कभी कभी आप निकल के जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लिमिटेड चॉइस के अंदर आप खाते हैं, कि आप गए, आपने कुछ साउथ इंडियन ले लिया है, चाइनीज ले लिया, उसके ज्यादा डिटेल्स नहीं होती है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम में लिटिल बिट ऑफ चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, तो ये उसका रिकमेंडेशन है। और यहाँ पर उनको 3 साल का डिग्री कोर्स था तो 6 सेमेस्टर में कर दिया, 2 साल का था तो 4 सेमेस्टर में कर दिया, इस तरह से इनको कन्वर्ट कर दिया, जो कि 1960s 70s में इंटरनेशनली पॉपुलर था, उसको फॉलो किया गया। ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इनसे कंसर्न आपका ज्यादा नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो 1969 में स्टार्ट हुई थी सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम के साथ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है जो 1974 में स्टार्ट हुई उसके साथ। अब ये थर्ड आता है जिसको कहते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम, CBCS। दिस इज जस्ट लाइक द कैफेटेरिया, मीन्स कि यहाँ जैसे कैफेटेरिया में जाते हैं, वहां पर आपको लोकल, नेशनल, रीजनल, स्टेट और इंटरनेशनल डिशेस, मींस एवरी टाइप ऑफ डिश इज देयर, चॉइस इज योर्स, कि आप अपने प्लेट में क्या रखते हैं, प्रोवाइडेड विद सर्टेन राइटर्स। तो यहाँ भी ये चॉइस का जो फंडा है वो लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन एंटायरली शिफ्ट हो गई, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो टीचर्स की भूमिका की जगह अब वो फैसिलिटेटर और मेंटर्स की भूमिका में आ गए। ये जो इसके वेरियस पैरामीटर्स हैं, ये टॉप एडवांटेजेस इसके थे। ये इसमें जो मेन एडवांटेजेस इसके साथ थे कि पहली चीज है कि स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ेगा, अपने हिसाब से चूज करेगा उसको क्या पढ़ना है। पार्टिसिपेटरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, या फैसिलिटेटर की भूमिका टीचर की है। कंटिन्यूअस डाइवर्सिफाइड एजुकेशन है, चॉइस बेस्ड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, मींस जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वही पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद रिगार्ड टू द क्रेडिट, अभी तक क्या था कि जो कोर्स करिकुलम है सभी का एक सा होता था, लेकिन नए सिस्टम CBCS के अंतर्गत मिनिमम क्रेडिट 120, और उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो 4 क्रेडिट के 4 कोर्स और ले सकता है। दैट मीन 16 क्रेडिट के एक्स्ट्रा कोर्स वो ले सकता है। अगर कोई अतिरिक्त पढ़ना चाहता है तो एडिशनल कोर्स क्रेडिट सिस्टम इज बीइंग प्रोवाइडेड इन CBCS। ऑनर्स लेवल में 140 इज मिनिमम और 160, दैट मीन्स कि 4 क्रेडिट के 5 एडिशनल कोर्स आप ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हो। प्लस इसमें इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में भी पूरी फ्रीडम दी गई कि आप अपनी मर्जी से विद इन द डिसिप्लिन चूज करिए या दूसरे डिसिप्लिन का चूज करिए, और उसमें आधे अपने डिसिप्लिन और आधे दूसरे डिसिप्लिन के पढ़ने का अवसर आपको प्रदान किया गया। फ्लेक्सिबल है, कंटिन्यूअस है, असेसमेंट मेथड, इवोल्यूशन मेथड मल्टीपल टाइप के हैं, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, प्रेजेंटेशन, फील्ड सर्विस, स्टडीज, राइटिंग कैपेबिलिटी, मींस नंबर थिंग्स।
उसके बाद स्किल ओरिएंटेड है, इसमें एक कोर्स कंपल्सरीली डाला गया है जिसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, जहां पर आपकी कौशल विकास के ऊपर सारा काम किया जाएगा, उसके अंदर उन्मुखीकरण किया जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फोकस किया गया और कोलैबोरेटिव मॉडल में इसको पास किया गया और इंटरनेशनली कनेक्ट किया गया, इसलिए CBCS इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ चैलेंजेस जो फैकल्टी मेंबर्स के साथ रहे कि पहली चीज है कि परसेंटाइल सिस्टम हटाया गया, तो जो आपका लेटर ग्रेडिंग है 90% वाले को भी वो मिलेगा और 100% वाले को वो मिलेगा, तो एक एस्टिमेशन है, क्रेडिबिलिटी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। प्लस अनइवन फ्लक्चुएशन होगा, जो इंटेलिजेंट टीचर्स हैं उनके कोर्स पॉपुलर हो गए तो उनके पास लोड ज्यादा हो जाएगा, दूसरे के पास कम हो जाएगा। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीजें जो इसके साथ चैलेंजेस के साथ फोकस्ड है। ये जो चीजें हैं, ये 5 पॉइंटर साइकिल आपको बताई जो CBCS में है। ये क्रेडिट सिस्टम इस तरह से फोकस होता है, यू मीन्स द क्रेडिटर, द स्टूडेंट, क्रेडिटर्स कौन है, यूनिवर्सिटी, और ब्यूरो कौन है, बैंक। ये इन 3 लोगों के बीच में रहेगा। स्टूडेंट अपनी क्रेडिट यूनिवर्सिटी से चूज करेगा और वहां पर क्वालिफाई करेगा, जब वो पास कर लेगा तो यूनिवर्सिटी उसकी क्रेडिट को उसके बैंक में, उसके अकाउंट में जमा कर देगी, जिसको लेके वो इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर ले सकता है हायर एजुकेशन के लिए, और कहीं भी जा सकता है और कभी भी पढ़ सकता है और कहीं से पढ़ सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं उसके साथ लागू होगी। ये इससे क्या फोकस होगा, क्रिएटिविटी और टैलेंट, क्यूरियोसिटी रहेगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, टैलेंट डेवलप भर के आएगा, लोगों के अंदर जो कैपेसिटीज हैं बढ़ के आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ेंगे। कॉन्टेक्ट आवर्स बिल्कुल आपके स्पष्ट है कि आपको कोर्स पढ़ा तो कितने समय में पढ़ा, क्या उसका आउटकम है, क्या उसका उद्देश्य है, ये सारी चीजें पता है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस हर लेवल पर आप चेक कर सकते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ द टाइम, कि कहाँ किस चीज में वीकनेस है, आप उसको पिन पॉइंट करके पकड़ के उसको डेवलप कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम आपको पता है कि जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, आपके अंदर एक उद्यमिता के साथ साथ एक इनोवेशन का भी एक इनकलकेशन रहेगा, जिसमें आप वेंचर कैपिटल के थ्रू, इंक्यूबेशन के माध्यम से और दूसरे माध्यम से अपने स्टार्टअप्स को, दूसरी चीजों को आप कर सकते हो आगे। ये कुछ फीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी का टर्मिनोलॉजी है जो कि इसी से कनेक्टेड है, ये गुरु दक्षता में डिटेल बताते हैं। इसमें ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है कि किस तरह से करेंगे, ये पूरी उसी की टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बता दी है। ये डेफिनेशंस और ये कीवर्ड्स इसके साथ हैं, जिसमें कि अब जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आएगा, मतलब सेमेस्टर के अंदर आपने क्रेडिट्स को चूज किया और क्रेडिट्स को चूज करने के बाद फिर आपने एग्जाम दिया तो वहां से आपका लेटर ग्रेड आया। लेटर ग्रेड विद मल्टीप्लाइड विद क्रेडिट, जो आपकी क्रेडिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपका लेटर ग्रेड पॉइंट आएगा, और वहां से उनको टोटल कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट से जब हम भाग दे देंगे तो आपका उस सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाएगा। तो ये सिस्टम इसमें लागू हुआ, और यहाँ एक चीज फिक्स की गई कि 90 दिन का सेमेस्टर कंपलसरी है। अगर 6 डेज का वीक है तो 15 वीक का होगा, और अगर 5 डेज का वीक है तो 18 वीक का सेमेस्टर सिस्टम होगा। तो ये इसमें व्यवस्था दी गई, और सर्टिफिकेट के ऊपर सेकंड 2 डेसिमल सिस्टम के साथ और सारी चीजें पूरी, जैसे उसका कोर्स टाइटल है, उस नंबर ऑफ क्रेडिट क्या है, ग्रेड क्या है, कहाँ से किया, कैसे किया, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियरली मेंशन्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्ट एंड द ग्रेड सर्टिफिकेट। दिस इज द CBCS मॉडल। ये देख रहे हैं कोर्स के अंदर ये कोर कोर्सेज हैं जो कि फिक्स हैं। सपोज मैंने साइंस साइड पढ़ना है तो साइंस मेरा कोर हो गया, जहां पर कोई चॉइस नहीं है, और उसके जो कोर्स के नेटवर्क हैं, जो सिलेबस है वो फिक्स है। दूसरा है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, वहां पर 2 चॉइसेस हैं कि हमें अपने डिसिप्लिन से पढ़ सकता हूं, दूसरे से, वो दोनों डिसिप्लिन से पढ़ सकते हैं, और फिर उसमें फ्रीडम है टीचर को कि वो चाहे प्रोजेक्ट करे, चाहे डिजर्टेशन करे, चाहे पढ़ाए, वट एवर द थिंग्स ये है। कोर कोर्सेज के अंदर पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पैन इंडिया एक सिलेबस डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने दिया था कि ये सिलेबस लागू होगा, बट कीपिंग इन व्यू द रीजनल प्रॉब्लम्स, जो उनके रीजन के हिसाब से, उनके स्टेट के हिसाब से, इसमें 20% की परमिशन दी थी कि आप सिलेबस के अंदर 20% का बदलाव कर लें, इस व्यवस्था में 20% बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिमांड की गई तो उसको 20 से बढ़ा के 30 कर दिया गया। 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ द एंटायर इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इज द सेम। जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम है पर्टिकुलर फील्ड में 70% सिलेबस विल रिमेन द सेम। तो दिस इज द थिंग। और दूसरा इसमें तीसरा कोर्स था, इसको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स उसमें दिया गया CBCS के अंदर। उसमें 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक फाउंडेशन कोर्स जो कि कंपलसरी है, जिनको आप नहीं कर सकते, तो उसमें एक एनवायरमेंट और मानवाधिकार की बात की गई, जो 2-2 क्रेडिट के कोर्स है। 2 क्रेडिट का एनवायरमेंटल ह्यूमन राइट्स का एक कोर्स दिया गया, और दूसरा 2 क्रेडिट का एक आपको लैंग्वेज का कोर्स दिया गया, जिससे कि बोलचाल की भाषा या एक पर्टिकुलर भाषा को आप ज्ञान अर्जन करें और उससे आगे बढ़े।
तीसरा इसमें एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स दिया गया जो कि वोकेशन ओरिएंटेड है। अगर आप चाहें तो 6वें सेमेस्टर में आप डेयरी फार्मिंग, एपीकल्चर या किसी भी तरह की बिना में कोई भी ऐसा रोजगार परक विषय आप चूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपना उद्यम लगा सकते हैं, और जिसके लिए यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस सेंटर में और इंक्यूबेटर्स हैं जो फंडेड है, जहां पर 5, 10 और 2 लाख के हिसाब से आपको ग्रांट भी मिलती है। उस सीड मनी से आप अपना इंक्यूबेटर सेंटर में अपने स्किल के ओरिएंटेड कोई भी आप वेंचर बनाइए, कोई भी आप स्टार्टअप बनाइए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, मेंटर आपको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप जब फील्ड में ले जाते हैं तो उसको आप डेवलप करके ले जाइए और सीड मनी वापस कर लीजिए। तो इससे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पे फोकस किया क्योंकि इससे इनोवेटर सामने आए, एंटरप्रेन्योर सामने आए, ना कि जॉब सीकर्स। तो ये सीबीसीएस का एक फंडामेंटल था। ये आपके सामने मॉडल है, ये कोड जो दिया गया है ग्रीन से, ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। इसमें हर सेमेस्टर के अंदर 2-2 क्रेडिट के, मतलब 2-2 कोर्स दिए गए, 4-4 क्रेडिट के। दैट मीन्स कि 6 सेमेस्टर के अंदर 12 पेपर में आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, और सिलेबस का नाम बदल के उसको LOCF कर दिया गया। दूसरा फाउंडेशन कोर्स में ये कंपलसरी है, जहाँ कोई चॉइस नहीं है, जो एनवायरमेंट और भाषा का है, और दूसरा ये आपका इलेक्टिव है जहाँ चॉइस है। ये जेनरिक इलेक्टिव में डिसिप्लिन स्पेसिफिक और डिसिप्लिन से हटके, दैट मीन्स कि आप आर्ट साइड के भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और साइंस के भी पढ़ेंगे, दोनों तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। यहाँ ये टेम्पलेट के रूप में बहुत से सिलेबस बने हुए ऑनलाइन साइट पर पड़े हुए हैं, ये इनकी पूरी संकल्पना दी गई है। ये देख रहे हैं ना, ये सारे कोर्सेज में, ये कोर कोर्सेज में, ये 2 इलेक्टिव कोर्स हैं, ये फाउंडेशन कोर्स हैं। ये एग्जामिनेशन सिस्टम भी बड़ा फुल प्रूफ है कि वहां पर आपको यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम, मींस एट एवरी लेवल यू हैव टू टेस्ट। आपने एक यूनिट का तैयार किया, उसके बाद आपने तो यू हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग इन योर LOCF कि क्या आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति के अंदर दिया गया। ये क्रेडिट लेटर ग्रेड सिस्टम है। आउटस्टैंडिंग 90 to 100, अगर किसी पर O लिखा है इसका मतलब है वो 10 पॉइंटर स्केल के ऊपर, ग्रेड पॉइंट उसका 10 है। जो एग्जाम के अंदर परसेंटेज आएंगे उससे ग्रेड पॉइंट डिसाइड होगा, और 40% से नीचे अंडर ग्रेजुएट में फेल, 50% से नीचे पोस्ट ग्रेजुएट में फेल। तो ये क्रेडिट सिस्टम है, और यहाँ पर और जो इसमें बी मेंटेन किया गया है वो 55% पे मेंटेन किया गया है। बी को क्यों किया गया है? ताकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो 55% है, तो बी से वो स्टार्ट कर सके। ये इनका बाकी जैसे करिकुलर एक्टिविटी, दूसरे तरह के कोर्सेज हैं वहाँ सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, और सभी सेमेस्टर के कोर्सेज को जोड़ के क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज आया, जिसे CGPA कहते हैं। कि 6 सेमेस्टर के अंदर आपने सपोज कीजिए कि 140 क्रेडिट का टोटल आपने डिग्री की, और उसके साथ आपने हर सेमेस्टर में जो आपने अंक प्राप्त किए, परसेंट SGPA प्राप्त किया, उस फॉर्मूले को एक साथ मिक्स करते हुए आपको ये चीज प्रदान की जाएगी। तो ये चीज इसके साथ है। यहाँ ये देखिए कैसे पेपर सेट होना है, उसका प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आपसे थोड़ा सा कंसर्न कम है। या जो मैंने बताया कि सारी चीजें 50-50 फेयर हाइस्ट डिग्री, मतलब 50% किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो असेसमेंट हो, पेपर मेकिंग हो, किसी तरह का टेस्ट हो, मींस एनी टाइप ऑफ द असेसमेंट और इवैल्यूएशन, 50-50%, 50% फ्रॉम इनसाइड, 50% फ्रॉम द आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। ये इंटरनल एक्सटर्नल की व्यवस्था की गई। कोई भी किसी तरह का असेसमेंट या किसी तरह का इवैल्यूएशन, कोई भी चीज हो, ये सारी चीजें। यहाँ ये फॉर्मूला दिए गए हैं कि SGPA मींस सिग्मा डॉट, यहाँ दिया है क्रेडिट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय जो क्रेडिट लिए मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड पॉइंट, और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स से भाग देंगे तो SGPA आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो क्रेडिट पॉइंट है मल्टीप्लाइड बाय सेमेस्टर ग्रेड, के 20 क्रेडिट का आपने कोर्स लिया और ये सेमेस्टर में ये मिले, और टोटल नंबर ऑफ द क्रेडिट ऑफ द एंटायर कोर्स से जब उसको डिवाइड कर देते हैं तो CGPA आएगा। तो CGPA और SGPA कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर का जैसे दिया हुआ है, ये देखिए आप 20 के पहला क्रेडिट में देखिए फर्स्ट सेमेस्टर 20 क्रेडिट, 6.9 का CGPA आया, 6.9 के CGPA को मल्टीप्लाई किया तो 138। तो इस तरह से इनको टोटल जोड़ा और 140 क्रेडिट से जब इसको आप भाग दे देंगे तो 7.66 CGPA का आपका आ जाएगा आउटकम। सो दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CGPA। SGPA में डिफर, सेमेस्टर लेवल पर ये डिफर कर सकते हैं, बट क्यूमुलेटिव लेवल पर ये फिक्स रहेंगे। ये अलग अलग मैंने डिपिक्ट किए हुए हैं, यहाँ इनको अलग अलग दिखाया हुआ है, ये हर सेमेस्टर के साथ कैसे कैलकुलेट करने। ये जब आप गुरुदक्षता या कोई फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आएंगे वहां बेनिफिट करेगा, और ये कैसे इनके पेपर्स डिसाइड होने, ये पूरा है। ये पूरा ये CGPA सिस्टम है। ये 14 क्रेडिट का है, ये आपका ऑनर्स लेवल का है।
ये आपका बीकॉम ऑनर्स का है, किस तरह से इनके पेपर सेट होंगे, किस तरह से दो आपके सब्जेक्ट चूज करने, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड है और इनको ये लागू किया गया। और बाय 31 मार्च 2015 ऑनवर्ड सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कंपल्सरीली ये क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का आदेश हुआ था, तो ये चला। यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई थी। दूसरा, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पर 24 क्रेडिट्स के 4 वो लिए गए, तो 96 क्रेडिट का टोटल दिया गया और उसमें मिनिमम जो माना गया कि 4-5 से बड़ा कोई कोर्स ना बनाए और 3 से छोटा ना बनाए और मैक्सिमम को 4 क्रेडिट के बनाए और उनको प्रोजेक्ट आवर्स में उनमें कन्वर्ट किया गया। ये एलटीपी है। एलटीपी का मतलब है लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल। लेक्चर का मतलब ये है कि 1 क्रेडिट इक्विवेलेंट टू 15 आवर्स इन 15 वीक्स। ट्यूटोरियल का मतलब है 1 क्रेडिट इक्विवेलेंट टू 15 आवर्स इन 15 वीक्स। प्रैक्टिकल का मतलब 2 आवर्स पर वीक फॉर 15 वीक, दैट मींस 30, जो लेक्चर ट्यूटोरियल का जस्ट डबल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए डबल आवर्स है और ट्यूटोरियल लेक्चर के लिए आधे है। ये उसका ब्रेकअप है, किस तरह से क्या करना है ये कोर्सेज के लिए। ये एक समग्र टेबल है कि इसमें ये डिसाइड किया गया कि कोर कोर्सेज के अंदर कितनी क्रेडिट है, एबिलिटी एनहांसमेंट में कितनी क्रेडिट है, स्किल एनहांसमेंट में कितनी है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में कितनी है, जेनरिक इलेक्टिव में कितनी है और कैसे कोर्स डिजाइन करना है। ये आपका अलॉटमेंट है कि 70% आपको एलटीपी मोड में और 30% को करिकुलर या नोशनल एस्पेक्ट से आपको स्टडी करना है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। ये बेसिकली जो सीबीसीएस का जो पर्पज है उसके अंदर जो कोर सब्जेक्ट है वो दैट इज द सोल, एक बेयर बॉडीड है। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिलोंग टू द छत्तीसगढ़, तो जो आपका कोर है वो आपका छत्तीसगढ़ के आपकी ओरिजिन है वो छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आपने अपने को डेवलप किया, ग्रूमिंग की, प्रेजेंटेबल बनाया, दैट इज द डिसिप्लिन स्पेसिफिक कि आप अपने स्टेट लेवल के ऊपर आपने अपने आप की पर्सनैलिटी को एक बहुत पॉपुलर बना लिया। और जब आपने कुछ एडिशनल कोर्सेज और नई चीजें लेके चले गए, ग्लैमर वर्ल्ड में बाहर आए, बॉम्बे में आए, बेसिकली बाय सोल यू आर फ्रॉम दैट वन, तो ये अलग हो रहा है और वहां पर आप इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सनालिटी, तो ब्रांडिंग है। तो थर्ड लेवल प्रोवाइड्स यू द ब्रांडिंग। सो दिस इज व्हाट इज सीबीसीएस, कि ये तीनों तरह की फैसिलिटीज सीबीसीएस के अंदर प्रोवाइड की गई है। ये कोर है, डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज है और ओपन इलेक्टिव, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है जो आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को और हॉर्न करके आपको पॉपुलर और अकाउंटेबल बनाते हैं। ये सारे जो सिलेबस इसके मॉड्यूल है, ये आपका इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सिलेबस आपको दिखाई दे जाएगा। ये एलओसीएफ है, एक लर्निंग आउटकम बेस्ड कोर्स फ्रेमवर्क सिस्टम की जो बात करते हैं। एलओसीएफ जो सिलेबस है उसको सिलेबस का नाम बदल के उसको एलओसीएफ कर दिया गया। वहां पर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, कोर्स लर्निंग आउटकम, कोर्स आउटकम, सारी चीजें मैंडेट के साथ मेंशन करनी होती है। ये अलग अलग तरह के जो एलओसीएफ वाले कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट से आप देख सकते हैं, उनमें पूरा आपका मॉड्यूल दिया है किस तरह से डेवलप करना है। ये मेन आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 21 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया। दिस इज यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी स्कीम इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2021। और यहाँ से किया गया ताकि जो क्रेडिट्स स्टूडेंट एक्वायर करे वो किसी जगह डिपॉजिट होके उसको रिडीम कर सके। इसका ये ड्राफ्ट है किस तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रन करता है। 7 साल तक यहाँ पर आपकी सारी क्रेडिट्स जमा रहेंगी और ये डिजी लॉकर के माध्यम से कनेक्ट होता है, इसे मेरी पहचान नाम दिया गया है और वहां से इसको आप वेरीफाई कर सकते हो और सारा आपका क्रेडिट सिस्टम उसके ऊपर अवेलेबल है। Every university has to become the member of this particular academic bank of credit, and every student whosoever is studying in any institution has to take the ABC ID. This is just like the Aadhaar card ID के जो 12 डिजिट की है और इस ID के थ्रू आप ऑनलाइन अपना किसी भी जगह क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको मिलेगा एक विजिटिंग कार्ड की तरह, पूरा मैं फोटो के आपको एक आधार कार्ड की तरह पूरा आपको डिजिटाइज करके आपकी एजुकेशनल आईडी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ क्या है कि स्वयं पोर्टल है। ये स्वयं पोर्टल को थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये स्वयं पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्वयं पोर्टल के अंदर आप ब्लेंडेड मोड पर आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं और ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर अपना प्रोग्राम बनाइए और ये जो क्लासरूम कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दे। एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम एनी प्लेस कुड परस्यू द एजुकेशन ओवर देयर। और यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम से भी है और नॉन क्रेडिट सिस्टम से भी है। जरूरी नहीं है कि आपको स्टूडेंट होना।
लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और क्रेडिट सिस्टम से कर रहे हैं तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका टेस्ट लेगी और वहां से आपको करेगी। और यहाँ ये सारे कोर्सेज को आप देखेंगे तो बहुत तरह के कोर्सेज जो नई शिक्षा नीति ने स्वयं पोर्टल को, स्वयं प्रभा को, इन सबको और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को प्रमोट किया है, एमएसएमई को प्रमोट किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स वहां से अपनी सेवाएं और सुविधाएं ले सके। ये कोर्सेज हैं, एनीबडी कैन डू दीज कोर्सेज। जो भी आपको कोर्स सीखना है, करना है, जिसके लिए आप एक ट्यूटर ढूंढते हैं, दे आर फ्री फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। और यहाँ जैसे ये मान लो सपोज कीजिए आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना है, तो ये ब्लॉकचेन का आपने क्लिक किया AICTE। सर एक रिक्वेस्ट है जी, स्लो समझाइए, थोड़ा स्लो समझाइए सर। वो लाइट भी फास्ट चल रहे हैं सर। जल्दी जल्दी हुई कि वो स्टार्टिंग की स्लाइड चली गई, वो आपने जो समुद्र का बताया था क्लिक करनी थी क्या वो है, मैंने आपको बताया था ना कि टॉपिक बहुत लंबा है। चलो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा, आ रहा है, वो स्लाइड शुरू की चली गई। चलिए कोई नहीं, बता दीजिएगा, अभी मैं टाइम दूंगा आपको, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आई हैव टू कीप इन टच विद द टाइम, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और लेक्चर है ना आगे। नहीं सर, वो स्लाइड क्लिक करनी है ना, तो शुरू की स्लाइड क्लिक नहीं कर पाए, तो वो प्लीज आप डाल दीजिएगा अपना वो जिसमें भी पूरा है ना, तो हम लोग जो आपको चाहिए। हाँ, अभी आपकी एक्चुअली मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आपके रिसर्च से रिलेटेड एनईपी में क्या प्रोविजन है उनके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से विद्वान जी। सर हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ ना, तो समझ में तो अच्छे से आ रहा है, तो वो पूरा आपका लेक्चर प्लीज आप भेज दीजिएगा और नंबर भी दे दीजिएगा, तो उसमें हम लोग ये पूरा ले लेंगे। ठीक है सर जी, चलिए। स्लाइड क्लिक करनी पड़ती है। हाँ, ये स्वयं पोर्टल के थ्रू है। यहाँ स्वयं पोर्टल से जाके आप सारी चीजें, मैं ऑनलाइन इसलिए हैंड ऑन प्रैक्टिस से दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें, ठीक है ना। ये बहुत से कोर्स हैं आपके, पर्पजफुल है। यहाँ पर आपको रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड भी कोर्स मिल जाएंगे और बहुत सी चीजें आपको गाइडेंस भी मिल जाएंगी। कुछ चीजें जो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं बाद में, इसलिए स्पीड लिया है कि बाद में आपको बता दूंगा अभी मैं, ठीक है ना। कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसके प्रोविजन है, ठीक है ना। यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं और ये सारे रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं। ये देखो पूरा सिलेबस से लेके सारी चीजें दी है, कब शुरू होगा कब अंत होगा, हर चीज यहाँ पर लिखी है। अपने हिसाब से आप पढ़िए, और मैं भी खुद करता रहता हूँ ये कोर्स। तो इस तरह से इसमें बहुत कोर्सेज हैं जो आप वहां बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ये देखिए, इसको बनाने वाले कोर्स कौन है, इग्नू है, देन IIM बेंगलोर है, NCERT है, नेशनल ओपन स्कूल है, देन निटर है, NPTEL है, UGC है, AICT है, CA, मींस रिनाउंड प्रोफेसर, रिनाउंड पीपल प्रिपेयर दीज टाइप्स ऑफ द कोर्स। ये आपका ये सेल्फ बेस्ड वेब बेस्ड स्टडी फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड, इसका जो स्वयं है ना यंग एंड एस्पायरिंग माइंड के लिए है, तो आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये आपको सबको आगे लेना होगा, और ये भी आपको मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप देख रहे हैं ना, ये पोर्टल खुल जाता है आपके कोटा यूनिवर्सिटी में। मैंने इसके ऊपर क्लास ली, ये जरा खुल जाए। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट लाइक द बैंक, देख रहे हैं ना, ये बैंक देखिए, ये पूरा पैन इंडिया के अंदर लगभग 28 करोड़ लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। 1830 इसकी जो यूनिवर्सिटीज अपना इसमें है, देख रहे हैं ना, 562, ये पूरा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। और अब ये एजुकेशन के अंदर ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी होना बहुत जरूरी हो गया है। ये ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी की आईडी है। ये यूनिवर्सिटी अपना क्या करेगी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कनेक्ट होकर बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाएगी। पहले इसके अंदर मेंबर बनना बड़ा टफ हुआ करता था। इनिशियली जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई तो इसमें दिया गया था कि NIRF रेटिंग के अंदर इसकी टॉप रेटिंग होना चाहिए, इंटरनेशनली 1000 यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 675 पॉइंटर्स NBA में होना चाहिए, मिनिमम ए प्लस या मिनिमम A कैटेगरी होना चाहिए NAC रेटिंग में। तो ये थी, और स्टूडेंट्स को बनने के लिए ये QR कोड दिया रहता है यहाँ पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप मेंबर बन सकते हैं। यहाँ बनाने के लिए जैसे स्टूडेंट के अंदर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि PhD स्कॉलर्स को भी NEP राइडर के अंदर ये बनानी पड़े आईडी। तो ये देखिए, यहाँ मोबाइल नंबर है, दूसरा यूजर नेम से आप अपना बना सकते हैं, तीसरा यहाँ देखिए ये अदर कैटेगरीज में ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, और ये पिन करके आप पूरा अपना बनाएंगे। और नीचे देखो ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, पिनलेस
और ये देखो यहाँ से ये आया, ई पहचान बनती है और ये डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाती है कि जहां से सारी चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी पहचान देख रहे हैं ना ये, और ये अदर्स के अंदर जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरह की आईडीज बन जाएंगी। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की एक आईडी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी और बैंक के बीच में रहेगी। ठीक है ना? थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है ना? आप ये हाँ देखो, ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इनका ये डेटा आपको मिल जाएगा, हर यूनिवर्सिटी हर स्टेट का, जहाँ से भी आप जाके देखेंगे। और जो भी डिटेल है ये दिया, किस तरह से आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं, यहाँ देखिए बेनिफिट्स है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्रेडिट एक्युमुलेशन रिडेम्पशन है, क्रेडिट एंड ट्रेल मैनेजमेंट है, क्रेडिट अकाउंटिंग है, इनेबल स्टूडेंट मोबिलिटी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। आप सपोज कीजिए पीएचडी अभी कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी से, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए सुविधा है, मैरिज होती है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो यहाँ का एनरोलमेंट आप वहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं, उसके अपने राइडर्स हैं। तो इस तरह की ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर दी हुई हैं। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ स्टूडेंट टू ओन देयर लर्निंग पाथवेज, किस तरह से क्या करना है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जब आपकी इच्छा है टेंथ करिए, छोड़ दीजिए एजुकेशन, ट्रांसफर ले लीजिए, ट्रांसपेरेंसी है, एनीवेयर एनी टाइम, अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी एट देयर ओन पेस, ये सारे फीचर इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये 3A के कंसेप्ट पे काम करता है, एलोकेशन है, एक्युमुलेशन है और उसके साथ, ठीक है ना? तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में हम बात कर रहे थे। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जो फीचर्स आपको बताए, 7 इयर्स तक ये आपका डेटा डिपॉजिट रहता है, दिस इज देयर, 7 इयर्स का डेटा डिपॉजिट है और ट्रांसपेरेंसी है पूरी। और ये एलोकेशन, एक्युमुलेशन एंड अवार्ड, 3 चीजों के ऊपर काम करता है। एलोकेशन आपको यूनिवर्सिटी से कराना है, एक्युमुलेट आपके क्रेडिट बैंक में होंगे जब आप पास कर लेंगे, और अवार्ड आपको उसी के बेसिस पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो डिग्री, सारी डिग्रियां होंगी। ये एक सीबीसीएस का है। तो ये पूरा एक है, और यूनिवर्सिटियां लगभग 1113 इसके मेंबर हैं। प्लस मूक्स प्रोग्राम भी आप लॉन्च कर सकते हैं जिससे कि आप स्टडी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो, ठीक है ना? तो ये एक आपको मैंने यहाँ तक ये आपको बताया। अब आपको मैं कुछ चीजें आपके रिसर्च से रिलेटेड आपको और बता देता हूँ, ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा अभी इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ अभी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं? उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है आपकी रिसर्च और एजुकेशन के लिए जो प्रोविजंस हैं, वैसे प्रोविजंस बहुत सारे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के अलग हैं, फैकल्टी मेंबर्स के लिए अलग हैं, और सबके लिए अलग अलग टाइप के प्रोविजन है। थोड़ा स्टैटिक हो गई है विंडो एक। Sir, I would like to put a question on Grant Commission. Which So I type? feel you are the right person to ask this question. That's why I'm asking this question. It is a bit related to Grant Commission. Is it audible? Hello? जस्ट वेट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा रिकनेक्ट। जी Sir,
हाँ बताएं। Yes, sir. Sir, we appreciate whatever you said about amendments and all. But my question is, sir, have ever Grand Commission gave a thought that what about those students who are already passed out from the institutions and they are just roaming with the certificate of marks whatever they got, because government universities they hardly provide percentage. The marks which they got are very less if we compare with the private universities or private institutions. जी हाँ, तो सर उसका क्या है, कोई ग्रैंड कमीशन कभी सर इस बारे में वो सोचते हैं या फिर मतलब कि उनके परसेंटेज इतने कम होते हैं गवर्नमेंट, इवन दे वर टॉपर्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं आई केम अक्रॉस सर, वो टॉपर्स हैं बट दे आर मूविंग विद 65 or 69% एज ए टॉपर. Yeah, definitely. And then when they move in the market and they just stand at the end in the queue and they see कि कोई नोएडा से, अमेठी से and all, I'm not just quoting the names, but ऐसे private university से लेकर आते हैं वो certificate and they are just in the front, in the row. So sir, have they ever gave a Yeah, thought? definitely. So because it happened with me also. See, I was a topper of my university and like I was in Asia's #1 university of sports, that is Lakshmibai University in Gwalior, sir. That LNIP. happened with me. Yes, LNIP, sir. That happened with me also, sir. I scored 69% and I was the topper. And when in my final year, when I asked to my one of my professors, she said कि कोई बात नहीं, जब मार्केट में जाएंगे ना बेटा, the name will work, है ना, तो नाम से तुम पहचाने जाओगे. But this is not the fact. See what UGC just drafted one thing that 75% अगर आता है आपका, then you'll be directly admitted in PhD. Sir, I read that. Sir, your conviction is very right. Whatever you wanted to say, explain, whatever you are saying, these things are there. And gradually everything is going to be addressed one by one. Earlier time, let's take the example of one thing. In UP and in various places, B.Ed was there. वहां पर B.Ed में बड़ा एकदम से भीड़ आई और लोगों को नौकरियां और जॉब मिलना शुरू हुई. तो जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने पैसा लेके 95%, 90% इस तरह के राइडर्स देके दिए. और शुरुआत में कुछ समय के लिए तो ये लगा कि ये बहुत बेकार सिचुएशन है. जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं उनके परसेंटेज कम है और जो वैसे पैसा देके डिग्री ला रहे हैं वो है. लेकिन बाद में हुआ क्या, वहां पर एक नया एग्जाम आ गया, TET. So when these competitions come in the way, then you can just see. जैसे कि आज UPSC हो. So you know, sir, how rough and tough training, the training section we went through. You know about our university. I entirely. But university devising certain things कि उनके parameters जो हैं, जैसे कि अब NAC के ऊपर, NBA के ऊपर राइडर है, तो इसके ऊपर फोकस है कि कैसे इस चीज को चेक किया जाए. या जो फेक परसेंटाइल सिस्टम है, या जो इस तरह से इसमें बहुत से जो ग्रे हॉर्सेस आ गए हैं उनको कैसे एलिन आउट किया जाए. तो जो कंसेप्ट है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का कंसेप्ट है, और जगह तो उसको मैच किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत क्रूशियल चीज है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए. और सारे प्लेटफॉर्म पे इसके अंदर डिस्कशंस की बात भी आई है. I request you kindly convey this message to the Grand Commission. This is one of the important pointer. Yes. Yeah, this is one of the important pointer because we used to feel this one. मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज से जैसे आए और दूसरे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से बच्चे आते हैं, तो there is a lot difference between the two with regard to the knowledge. लेकिन when the tremendous difference, sir. Yes, sir. They hardly gone through any training. They don't know even ABCD of sports. It happens. अब आप उसका कन्विक्शन ये देखिए कि आज एक IIT से निकलता है स्टूडेंट और एक रीजनल कॉलेज से निकलता है और एक प्राइवेट कॉलेज से निकलता है. देयर इज ए लॉट डिफरेंस. लेकिन दूसरे एरियाज में इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उन्होंने हार्ड एंड फास्ट उसको मेंटेन किया, क्वालिटी कल्चर को. धीरे धीरे अब इस एरिया में जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो क्रेडिट सिस्टम आया है, तो इससे जो ग्रे हॉर्स है जो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे, जो डार्क हॉर्स है फिल्टर्ड आउट होंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और आपका जो नॉलेज हो रहा है और जो चीजें हैं वो वहां पर पे करेंगी. एक जॉब सीकर्स मार्केट में ये थोड़ा सा परसेंटाइल सिस्टम जो है ना, वो एक आपका ट्रबलसम है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जी ठीक है सर, थैंक यू सर. और किसी को कुछ पूछना है या कुछ आपको आपके रिसर्च प्रोविजंस के बारे में बता दें, क्योंकि टाइम लगभग 10-15 मिनट अभी है हमारे पास.
इसमें बहुत से ये एक्चुअली बहुत है इसमें एनईपी में, लेकिन इसके अंदर जो मेजर चेंज हुआ है, जो मेजर जहां से फोकस हुआ है, जहां से हम अपने को प्रभावित कर रहे हैं, उन एरियाज को मैंने टच किया है। इसमें टीचर्स के लिए भी बहुत प्रोविजन किए गए हैं कि उनको गुरु दक्षता कार्यक्रम है, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप प्रोग्राम है, बहुत तरह के इस तरह के हैं, ठीक है ना। तो वहाँ प्रोविजन दिए गए और किस तरह से उसको एजुकेशन को, किस तरह से रिसर्च को, और जो मेरू कंसेप्ट आ रहा है कि जैसे अब दो तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, मेरू कंसेप्ट, दूसरा आने वाले समय में अब डी एफिलिएशन सिस्टम भी आने वाला है। डी एफिलिएशन सिस्टम इज व्हाट, कि एवरी इंस्टीट्यूशन विल बिकम ए यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ। अभी क्या है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही स्टूडेंट को एक ही डिग्री मिलती है, तो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि वो कहाँ से, जैसे आप LNIP से पढ़े हैं, ठीक है ना, आप दूसरा कहीं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो उसका यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, इंस्टीट्यूशन का नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब होती है जब वहां से क्वालिटी परसेंटेज ज्यादा लिए है और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस नहीं है। आज LNIP का जो लेवल है बाय नेम दैट इज सफिशिएंट, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ा सा इस चीज में क्या होता है ना, एक विशियस सर्किल चलता है। अब जो आने वाला समय है उसमें जो एफिलिएशन सिस्टम है उसमें ये होगा कि लेस देन 3000 की कैपेसिटी के जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनको एक तो मल्टीडिसिप्लिनरी होना होगा और दूसरा उन्हें सेल्फ सस्टेन्ड होना होगा। अब वो खुद अपना कोर्स बनाएंगे, खुद अपनी डिग्री बनाएंगे और वही चीज मार्केट में जाएगी। तो वंस अगर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से अगर क्वालिटी नहीं आई तो वो ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगी आने वाले जगह में। अभी तो क्या है, एक बड़े लेवल पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 500-600 कॉलेज होते हैं, तो इसलिए पता नहीं लगता यूनिवर्सिटी का नाम जाता है। लेकिन आने वाले समय में जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सब, लेस देन 3000, जो इसमें एनईपी में प्रोविजन है, क्योंकि एनईपी ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और ये टॉडलर स्टेज में है, अब ये शुरुआत हुई है, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे रेटिफाई करके उसको और क्वालिटी ओरिएंटेड बनाया जाएगा, बिकॉज द फोकस ऑफ द कंट्री इज टुवर्ड्स द क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए अब जो नया रिफॉर्म आया है उसमें क्या किया गया है, वन नेशन वन एक्रेडिटेशन सिस्टम, मीन जो अभी एनबीए और नेक की दो बात हम कर रहे थे, अब दोनों हटके अब केवल एक ही हो जाएगा, एनबीए। और वहां एक्रेडिटेशन कैसे होगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, तो वहां क्वालिटी ग्रेडिंग में। आज आप मार्केट में जब सर्वे करने जाते हैं तो आप रिव्यूज पढ़ते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में इन यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, इनके सबके रिव्यूज आएंगे। ऑल्दो सम आर कस्टमाइज्ड इन द फेक रिव्यूज, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वालिटी का जो पैरामीटर है दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर देयर, ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम, बट दीज थिंग्स विल हैपन एंड दीज ग्रे हॉर्सेज एंड दीज फ्लायर्स विल बी फिल्टर्ड आउट। यस सर जी। एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा अभी शेयर कर दे रहा हूं, जस्ट वेट 1 मिनट। And sir, one more thing, if we compare the people, those who are coming with the degrees from south, what they are showing, they are having maximum percentage every time, like for last 50 years it is going so in south. या डेफिनेटली वो प्राइवेट प्लेयर्स 2000 ऑनवर्ड जो आए हैं उन्होंने मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब किया है, लेकिन दे विल बी डन अवे विद, और उनको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब उसमें क्वालिटी एजुकेशन का कंसेप्ट अब आने वाला है और क्वालिटी एजुकेशन के अंदर ही हम डील करेंगे, तो ये चीजें, ये ग्रीवेंसेस वगैरह खत्म होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समय लगता है किसी चीज को, एक व्यवस्था को, एक सेटअप को लाने के लिए, और इंडिया जैसी कंट्री में इतने लोगों को एड्रेस करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। डाइवर्स कंट्री, यस सर। हाँ, तो बहुत सी चीजें हैं और कुछ आपका बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है, बट देयर इज ए डिफरेंस। अल्टीमेटली एक लेवल के बाद क्वालिटी रूल्स ओवर देयर, फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत सी चीजें। मैं एनईपी भी बता रहा हूँ, लेकिन इसके शॉर्टकट्स भी मैं बताता हूँ कि हाउ टू सपोर्ट दिस, एक अच्छी चीज को सपोर्ट करके आगे कैसे लेके जाना है। ये अभी क्या है, एक तरह से मान के चलिए 3 वर्ष की है, 3 वर्ष के एक बच्चे का सिचुएशन ले लीजिए, एक एनईपी का सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा चल रही है ना। अब आपको एक थोड़ा सा मैं रिसर्च एस्पेक्ट के ऊपर भी कुछ इसके पॉइंटर्स और पैरामीटर्स है, जो अभी गुरु दक्षता कार्य, एक अभी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है MMTC का, वो फैकल्टी मेंबर्स के लिए कंपलसरी है। 5 सितंबर 2021 को आदेश हुआ कि सारे फैकल्टी मेंबर्स को NEP 2020 सेंसिटाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, तो मेरे वही लेक्चर चल रहे थे।
उसके अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। तो अब ये जो नई चीज आई है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बात की गई है उसके बारे में थोड़ा सा, ये जो एनईपी का चैप्टर 17 है दैट इज कनेक्टेड विद रिगार्ड टू द, ये जो एनईपी का जो चैप्टर मैंने शेयर किया है यहाँ, ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं ये आपकी व्यवस्थाएं किससे कनेक्टेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फोकस में। इसमें जो आर्टिकल है लगभग 10 इसके आर्टिकल्स हैं कि किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, सो देन आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करके किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और किस तरह से टैलेंट की पूल करके किस तरह कंट्रीब्यूट करके, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये प्रोवाइड की गई है। और इंडिया को किस तरह से, देखिए इसकी वजह ये है कि जो आज इंटरनेशनल रैंकिंग आती है वो पेटेंट्स के ऊपर आ रही है कि किस कंट्री से कितने पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, उसमें इंडिया काफी लो पोजीशन पर है और चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है और यूएसए उससे 50% पर है और कोरिया और जापान दूसरे कंट्रीज भी उसके साथ है, लेकिन टॉप पर इस समय चाइना चल रहा है। तो वो प्रोविजन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ उसको मेंशन किया हुआ है हायर एजुकेशन का फोकस, इसका जो चैप्टर 17.1 आर्टिकल में है, तो वहां पर इसको कंपेयर किया कि इजिप्ट में, ग्रीस में, मेसोपोटामिया और पुराने समय में जर्मनी वगैरह में कैसे क्या एस्टेब्लिशमेंट है, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, तो वो आपका है। उसमें कुछ कम्युनिटी स्टडीज भी अंदर आती हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंटली आपने ओपेनहाइमर की जो फिल्म देखी होगी, जो एटम बम के निर्माता की, तो उसमें उन्होंने एक दिया है कि उन्होंने जो आपका बेस लिया था इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर, भगवत गीता का एक कोट उसमें आया था। नेक्स्ट लेवल पर क्या है कि जो हमारा रिसर्च का इकोसिस्टम है उसको कैसे रोबस्ट किया जाए, जो 17 चैप्टर का आर्टिकल 2 है वो उसके बारे में फोकस करके बताता है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, आज हम किस में चल रहे हैं, एजुकेशन 4.0, एजुकेशन की चौथी जनरेशन है जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट है। 1784 से पहली जनरेशन स्टार्ट हुई थी कि जहां पर हम क्लासरूम टीचिंग और इस तरह के मेथड से आए, फिर थोड़ा बहुत हम इंटरेक्टिव लर्निंग में आए, फिर कंप्यूटर एडेड लर्निंग्स में आए और अब हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और मेटावर्सेस की आज हम बात कर रहे हैं। तो वी आर इन द एज ऑफ द मेटावर्सेस के जहां पर जो 1969 से शुरू हुई है एजुकेशन 4.0, तो उसको कैसे फोकस करना है, तो उसके ये प्रोविजंस इसमें दिए कि जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। जब मैं पीएचडी स्टूडेंट्स के अपने और दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्लास लेता हूं तो वहां मैं लगभग 150 से 200 टूल्स उनको प्रोवाइड करता हूं जो कि उनकी रिसर्च को स्मार्ट रिसर्च में कन्वर्ट कर देते हैं कि आप सेम टाइम में कैसे रिसर्च को प्रोडक्टिव बना के और कैसे अकाउंटेबल बना के और उसको कोलैबोरेट करके करेंगे। दिस इज द लेवल कि इंडिया के अंदर आप देखिए 0.069% ऑफ द जीडीपी इज पेड टुवर्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना लो है, जबकि यूएसए में 2.8 है, इजराइल में 4.3, दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि अपने जीडीपी का 4.53% और अब तो बढ़ के 5 के ऊपर हो गया है, 5% से ऊपर इजराइल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करता है। देन साउथ कोरिया, अनदर कंट्री, तो ये इस तरह से है। दूसरा, यहाँ कंट्री के अंदर मॉनिटरी रिसर्च के ऊपर हम फोकस करते थे, जबकि ये रिसर्च का कंसेप्ट आ गया इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर, कोलैबोरेटिव रिसर्च के अंदर, विद इन द सेम टाइम थ्रू द ई-विद्वान, दैट इज ए पोर्टल ओवर देयर इन इनफ्लिबनेट, यूजीसी का एक पोर्टल है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट पे आप जाइए, आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो इनफ्लिबनेट पे जाके ई-विद्वान को आप पोर्टल पर अपनी आईडी बनाइए। वहां पर 2 पोर्टल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक IRINS है, IRINS से आपको सारे रिसर्च पेपर और सारी चीजें और सारा डेटा, एक वहीं से इंस्टैट है, वहां से आपको अपने जो दूसरी चीजें हैं, जहाँ स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो सारी आपको हेल्प मिलेगी। प्लस ई-विद्वान पर आप जैसे हिस्ट्री के हैं तो ई-विद्वान पर जाएंगे तो वहां पर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, स्कॉलर रजिस्टर्ड हैं, प्रोफेसर रजिस्टर्ड हैं, आप सर्च कीजिए, आपके डोमेन, आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोई आदमी है तो कोलैबोरेट करके आप उनके साथ मिलकर रिसर्च को परस्यू कर सकते हैं। दैट इज ए कोलैबोरेटिव फॉर्म कि आप हाई एंड की क्वालिटी रिसर्च और इंटरनेशनल पैटर्न की रिसर्च आप चाहते हैं तो ये विद्वान पोर्टल को आप कनेक्ट करिए। तो ये एक वहां पर है जहां से आप इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेवल पर ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे क्रिएटिविटी को, अपलिफ्टमेंट को, आइडेंटिटी को, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की एजुकेशन को, पुराने समय में जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तो आपने देखा होगा सुश्रुता संहिता, चरक संहिता, ब्राह्मण संहिता, आर्यभट्ट की वेदशालाएं, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ द गैजेट, हाउ दिस नॉलेज हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ द थिंग्स। आपको ताज्जुब होगा कि जब खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया था उसमें 90 लाख से ऊपर किताबें जलाई गई थी। तो सी द लिटरेचर पॉइंट ऑफ दैट टाइम। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट ए फिंगर टिप अगे।
मीन्स आपके गैजेट्स में है और ऑनलाइन अप्रोचेबल है, आप इसके मेंबर बन जाइए। आईआईटी खड़गपुर ने एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है। वंस यू बिकम द मेंबर, वहां पर मोर देन 10 मिलियन बुक्स हैं, बहुत लंबी तादाद में, और फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी दीज बुक्स एंड देयर आर लॉट मेनी लाइब्रेरी सिस्टम्स आर देयर वेयर यू विल गेट द ई कंटेंट्स एंड रिसर्च रिलेटेड मटेरियल ओवर देयर। तो बहुत से रिसर्च रिलेटेड ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जहां आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारा ये चैप्टर 17 जो एनईपी का है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें आप इनको देखते हैं कि किस तरह से हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी को रोबस्ट किया जाएगा, कैसे फंडिंग की जाएगी, कैसे उनको मल्टी डिसिप्लिनरी जाएगा, और किस तरह से ये 21st सेंचुरी की एनलाइटेड नॉलेज सोसाइटी को डेवलप या वाइब्रेंट करके उसको डेवलप करने की बात करेंगे। और जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम अभी 5th पोजीशन पर हैं इकोनॉमी के मामले में वर्ल्ड में, और 3rd पोजीशन हम लाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर आना चाहते हैं। तो कैसे फोकस करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। ये इसके और ये पॉलिसी मीटर पैरामीटर्स हैं, जिसमें आर्टिकल 8 के अंतर्गत चैप्टर 17 में किस तरह से फैकल्टी मेंबर्स आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेंगे, हाउ ऑल दीज थिंग्स आर देयर, कैसे इंटरेस्ट है, कैसे टैलेंट हंट करेंगे, तो उनके लिए दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो दिया गया था, फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, वहां पर आईपीआर सिस्टम, आप इंडियन पेटेंट राइट्स के बारे में जानते हैं, आईपीआर सिस्टम और इनकी फोकसिंग करके किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, किस तरह से कोलैबोरेटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, किस तरह से मेरिट बेस्ड आपकी रिसर्च को हमें डेवलप करनी है। तो उसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, फिलैंथ्रोपिस्ट के सहयोग से एक ऑफर बनाया गया नेशनल रिसर्च फंड के रूप में, जो कि मैंने आपको बताया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एक कानून बना दिया गया है 2023 में अगस्त में, और उसके अंदर वहां पर 50,000 का प्रोविजन किया गया है, जिसमें से लगभग 36,000 रुपए का एक टारगेट 5 साल के अंदर खर्च करने का है, ताकि रिसर्च फैसिलिटी और फंडिंग फैसिलिटी क्रिएट की जा सके और रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनाई जा सके। तो दीज आर द सम प्लेटफॉर्म विच आर वेरी यूजफुल फॉर यू। ये जो अभी चल रहा है, ये थीम 5 आपको बताया, ये मालवी मिशन टेक्नोलॉजी का है, जो मैं क्लास अलग लेता रहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए रिसर्च के कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर ये सारी चीजें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, कि किस टाइप की रिसर्च हो, अप्लाइड बेसिक किस तरह से हो, नॉलेज का सोर्स कैसे जनरेट हो, लर्निंग अथॉरिटीज क्या हो, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, ये सारे फॉर्मुलेशन जो इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करनी है, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, साइंटिफिक मेथड्स के एप्लीकेशन कैसे करना है, क्रिटिक्स ऑन साइंटिफिक मेथड्स में है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कनेक्ट करके लाएंगे। नेक्स्ट, कैसे इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, रिसर्च का कॉज एंड इफेक्ट क्या है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, नॉलेज का ट्रांसमिशन, या नॉलेज और इंटेलिजेंसिया का समागम, कैसे पैराडिग्म में अप्रोच हो, ये सारी, और यूनेस्को की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को डेवलप करके कैसे इस चीज को लाना है, कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, कैसे इंडिजिनस नॉलेज को कनेक्ट करके वर्ल्ड क्लास नॉलेज हमें डेवलप करनी है, ये सारी चीजें इस एनईपी के अंदर ये फोकस करके दी गई हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो बात की गई है कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिफॉर्म करके रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज बनानी है। जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को रिसर्च ग्रांट के रूप में 100 करोड़ रुपीस मिले हैं टू फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको अपने इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करके करना है। तो इस तरह के प्रिविलेज यूनिवर्सिटीज को, जो कि ये A+ यूनिवर्सिटीज है, उनको ग्रांट देके इस पर्टिकुलर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू उनको अपग्रेड करके, प्लस कोलैबोरेटिव अप्रोच, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज, कनेक्टिविटी, बहुत सी चीजें हैं जहां पर इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च को करना है, या उनके एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट को फोकस करना है। नेक्स्ट, उस रिसर्च का असेसमेंट करने के लिए तो किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होगी, कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, कौन फंडिंग करेगा, क्या रिसर्च की एथिक्स हैं, उसके अंदर एकेडमिक ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, किस तरह से रिसर्च पार्टनरशिप एमओयूज के थ्रू करना है, कॉस्ट एनालिसिस क्या है, ये सारी चीजें इस एनईपी ने प्रोवाइड की है, जो कि आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करके उसको कनेक्ट करना है। बहुत सी फंडिंग एजेंसी है, सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग है, कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी किसके लिए फंड प्रोवाइड कर रही है, कौन किस तरह के जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, क्राउड फंडिंग कैसे आपको प्राप्त हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का कैसे एनवायरनमेंट हो। तो ये सारी चीजें जो रिसर्च के अंदर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, एवरी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जो IIT IIM में वहाँ चेयर कंसेप्ट चलता है,
जो इंडस्ट्री है वो अपनी एक चेयर एस्टेब्लिश करके अपनी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कराती है, वो अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कॉलेजेस के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हो, कैसे प्राइवेट फंडिंग हो, कैसे फिलैंथ्रोपी से आए, उस चीज के ऊपर बात करनी है। और लास्टली इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें पब्लिकेशन का क्या है। उस पब्लिकेशन में एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं शेरपा रोमियो। शेरपा रोमियो इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर या ऑन साइट है जो सर्च इंजन है कि जहां से आप रिसर्च रिलेटेड सारे पब्लिकेशंस रिलेटेड एवरीथिंग यू गेट ओवर देयर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, कैसे इम्पैक्ट फैक्टर का कैलकुलेशंस होते हैं, या एच इंडेक्स क्या है, i10 इंडेक्स क्या है, साइटेशंस क्या है, ऑर्क आईडी क्या है, गूगल स्कॉलर आईडी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्कॉलर आईडी क्या है, और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज अब आप जब जाते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो दे आस्क फॉर द एच इंडेक्स, दे आस्क फॉर द i10 इंडेक्स, they ask for the citations, they ask for the paper impact या UGC केयर का। तो ये सारी चीजें अब इसमें है। और उसके अलावा इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेटेंट्स का, IPRs का। जो भी रिसर्च है उसको आप कैसे पेटेंट कराएं, किस तरह से आप उसको बचाएं, तो ये सारी चीजें आज इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें आई हैं और जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये जैसे S10 इंडेक्स की जो इसमें बात की गई है, तो S10 इंडेक्स के अंदर ये आप किस तरह से उसकी अंडरस्टैंड द सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल, किस तरह से H10 इंडेक्स क्या है, तो S10 इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर सब ये चूंकि एट लेंथ की बात है, अब टाइम उतना नहीं है। 2005 ऑनवर्ड जो आपके जॉर्ज हिर्च जो इनमें है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उन्होंने एक S10 इंडेक्स का फॉर्मूला डेवलप की और S10 इंडेक्स के अंदर कैसे डिस्क्रिपेंसी, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर अलग अलग बताई गई। इम्पैक्ट फैक्टर का जो एनालिसिस है, ये कैसे 2018 ऑनवर्ड्स आप किस तरह से इम्पैक्ट फैक्टर को कलेक्ट करते हो, उसकी फॉर्मूलरी क्या है, वो सारी चीजें ये किस तरह से इम्पैक्ट फैक्टर का ये कैलकुलेशन करते हैं, ये इम्पैक्ट फैक्टर साइटेशंस क्या है, पब्लिकेशन ऑफ द 2 years लेते हैं, फिर उनको किस तरह से डिवाइड करके इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं, तो ये पूरा इसके अंदर। प्लस ये जैसे चार्ल्स डार्विन का आपका i10 इंडेक्स का निकाला गया, या ये i10 इंडेक्स को कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें। और ये ऑर्क आईडी आपके लिए होना बहुत जरूरी है, जो भी आपके रिसर्च रिलेटेड अपने वर्क कर रहे हैं, जनरेट ऑर्क आईडी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। तो ये इस तरह की बहुत सी चीजें हैं कि जहां इनके बारे में आपको, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब कहने के लिए बहुत है। Thank you, sir. Thank you, sir. We are so grateful for your time and efforts in speaking at our coursework. Your information on higher education system, new education policy and credit system in India is very valuable for us. Your words are very inspiring and your presence was an invaluable. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. You people like the lecture, na? Yes, sir. Very much. Yes, sir. It was so informative, sir. Yes, sir. We share the PPT also. We hope, sir, you will convey our messages, sir. Thank you. Thank you.